I am basically managing the startup ecosystem for Paytm, and I will just start sharing my screen. So can you all see the Build for India logo? Yes, sir. So basically, who am I? I am Vice President at Paytm. I had an initiative called Paytm Build for India, and in general, I had the Paytm startup ecosystem. And I am also the founder of Fun to Do Labs Open Education Project. So before Paytm, I was trying to start an NGO, and now I have created it into an open education. I have been a startup entrepreneur for 15 plus years and author of India's first book on mobile app development. The first thing which I would like to share would be that because I have been a startup entrepreneur for last 15 plus years before joining Paytm, Paytm was incidentally my first job. So I would be sharing all the gyan from first-hand perspective. So I am not just sharing gyan from a theoretical point of view. I am sharing all the knowledge from what I realized. And as a startup entrepreneur, I had to face a lot of difficulties. And whatever I am sharing is based on the best practices, which I have read more than 190 books in last 5 years, as well as I have observed Vijay, who is our founder, a Paytm founder, and worked with him. And I have met a lot of senior people in the startup ecosystem. I am sharing all these best practices as part of these. As you can see, he's on a cycle, but he wants to fly. So basically, an entrepreneur is a person who can do more than what is thought possible for less than what is thought possible. As an entrepreneur, the one of the biggest investors in Google in early stages, John Doerr, he coined this definition: an entrepreneur is a person who can do more than what is thought possible for less than what is thought possible. So, for example, before Paytm, general thought was that if you want to digitize Indian shopkeepers, there are more than crore shops in India. So every shop would require a POS machine, a credit card machine, and every credit card machine costs 10,000 rupees. So it will cost around 10,000 crores. And Paytm came and that 2 rupees sticker, if you paste that 2 rupees sticker, now you can accept digital payments. You don't require a 10,000 rupee machine. So that is what is entrepreneurship. So if you do 1 plus 1, 2, then obviously it's not entrepreneurship. If you do 1 plus 1, 11, then it's entrepreneurship. What is a startup? So a startup is basically any organization which wants to create a product or service under uncertainty. So see, startup क्या है? हमें बहुत ये क्वेश्चन होता है, फर्स्ट क्वेश्चन ये दिमाग में आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्टार्टअप एंड अ बिजनेस? सो बिजनेस बहुत लोग करते हैं. बिजनेस इज बेसिकली यू आर वांटिंग टू अर्न प्रॉफिट एंड यू स्टार्ट सम बिजनेस एक्टिविटी. But startup is different. Startup wants to create a product or a service and it does it under uncertainty. तो अगर आप पेंट की दुकान खोलते हो, पेंट की दुकान पहले ही हजारों खुली हुई हैं, तो इट्स नॉट अ स्टार्टअप बिकॉज ऑब्वियसली आप पहले से दुकानें खुली हुई हैं, आपने भी दुकान खोली, आप जस्ट एक नया बिजनेस खोल रहे हो. बट स्टार्टअप इज जनरली बिल्डिंग समथिंग which is new or it is innovating in a certain sense. एंड ये जो प्रोडक्ट और सर्विस बना रहे होते हैं, कई बार इनोवेशन डायरेक्ट नहीं होती, इनडायरेक्ट भी होती है. मे बी लाइक फॉर एग्जांपल, अगर फ्लिपकार्ट का एग्जांपल लूं, so Amazon was there in US, but to create something like Amazon in India was obviously from scratch very difficult, and even that is a startup. So then there are three types of startup. So one is winner takes all startup, lifestyle startup, social startup. So ये winner takes all startup क्या होती है? Winner takes all startup is startups like Uber, startups like Paytm, startups like Google, जो पूरी कैटेगरी डोमिनेट करना चाहते हैं. So generally, many entrepreneurs want to be big businessmen जो कैटेगरी डोमिनेट करना चाहते हैं. एंड स्टार्टअप कैन बी ऑफ एनी साइज. तो अगर रिलायंस जियो की बात करें तो वो भी एक स्टार्टअप है. स्टार्टअप का मतलब जरूरी नहीं होता कि इट्स अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन. आई वुड से कि एनी ऑर्गेनाइजेशन which wants to create product or service at any size is a startup. So winner takes all startup, अगर जैसे रिलायंस जियो की बात करें तो वो डोमिनेट करना चाहते हैं Indian telecom ecosystem. Paytm wants to be the biggest player in payment services. So we are all winner takes all startup. एक लाइफस्टाइल स्टार्टअप होती है. लाइफस्टाइल स्टार्टअप ये होती है कि जैसे आप बेस कैंप एक बड़ी फेमस स्टार्टअप है, फाउंडर्स है कि हमें नंबर 1 नहीं बनना है. दे से दैट वी आर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम and we want to earn decent money out of that, and they want to live a lavish lifestyle. तो वो Porsche चला रहे हैं या वो
उनके एक को फाउंडर रेस कार ड्राइवर हैं, शौकिया. तो बेसिकली दे आर लिविंग अ लैविश लाइफस्टाइल यूजिंग अ सक्सेसफुल स्टार्टअप. बट उनको वर्ल्ड डोमिनेट करने की कोई इच्छा नहीं है. जब वर्ल्ड डोमिनेट करते हैं तो कुछ और आपको सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं जो लाइफस्टाइल स्टार्टअप वाले नहीं करते. तो बेस कैंप वाले कहते हैं कि गर्मियों में जैसे कि एवरीबडी शुड वर्क जस्ट 32 आवर्स अ वीक, सर्दियों में जैसे कि 40 आवर्स अ वीक. बट विनर टेक्स ऑल स्टार्टअप में जैसे जैकमा है अलीबाबा के, ही से 996 होना चाहिए. 9 बजे से 9 बजे, सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक काम करो और 6 दिन. तो लाइफस्टाइल स्टार्टअप में वो चीज नहीं होती है, वो एक मारामारी नहीं होती काम की. बिकॉज दे डोंट वांट टू चेंज दी वर्ल्ड इन दैट सेंस. वो एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहते हैं फाउंडर्स के लिए और एम्प्लॉइज के लिए, बट दे डोंट वांट टू चेंज दी वर्ल्ड इन दैट सेंस कि जो विनर टेक्स ऑल स्टार्टअप का एक जुनून होता है कि मैंने दुनिया चेंज करनी है, वो कम होता है लाइफ. सोशल स्टार्टअप. सो बेसिकली सोशल स्टार्टअप इज अ स्टार्टअप. जैसे आप एनजीओ को देखते हैं, खान अकेडमी इज अ वेरी फेमस सोशल स्टार्टअप which wants to solve the education problem of the world using YouTube videos, and it's a social startup. They are not for profit. So these are like startups, but these are not for profit. तो ये तीन तरीके की स्टार्टअप होती हैं. जनरली आई हैव सीन लाइफस्टाइल स्टार्टअप और विनर टेक्स ऑल स्टार्टअप ज्यादा होती हैं, पर these days काफी सारे एंटरप्रेन्योर सोशल स्टार्टअप खोलना चाहते हैं. मैं भी पेटीएम ज्वाइन करने से पहले आई वांटेड टू ओपन अ सोशल स्टार्टअप, and that's why I'm still running Fun to Do Labs as a like thoda bahut I'm able to devote some time to that. Then we come to what are the three focus areas and three goals of a startup. तो स्टार्टअप के तीन गोल्स होते हैं. पोर्टफोलियो ऑफ प्रोडक्ट्स का. सो एवरी स्टार्टअप का सपना क्या होता है? हम अगर जब भी स्टार्टअप खोलते हैं, हमारा एक सपना होता है कि हमारे पास गूगल, फेसबुक जैसे पोर्टफोलियो ऑफ प्रोडक्ट्स हों. हमारे पास एक कल्चर हो हमारी कंपनी के अंदर विच इज वेरी गुड एंड पीपल वांट टू डाई फॉर दैट कल्चर. तो आप कभी भी देखते हो तो किसी कंपनी, हर एक कंपनी का फोकस होता है दे शुड हैव एन एक्सीलेंट कल्चर. एंड आईपीओ. तो आईपीओ इज दैट थिंग जो आपको पैसे देता है. तो गूगल का आईपीओ है तो फाउंडर्स बिकेम बिलियनियर्स. सो आईपीओ इज द फाइनल डेस्टिनेशन. अभी जैसे आई वांट टू क्लैरिफाई कि जैसे पेटीएम इज राइट नाउ नॉट अ listed company, we are not a IPO, we have not done IPO. तो हर एक स्टार्टअप का एक एम होता है कि वो आईपीओ लेके आए, पब्लिक इशू लेके आए. गुजरात में आई थिंक बताने की जरूरत नहीं है बिकॉज मोस्ट पीपल आर इनटू शेयर्स एंड ऑल, एंड ऑब्वियसली पब्लिक इशू का बहुत एक वो रहता है स्टार्टअप्स का एम. देन देयर आर थ्री फोकस एरियाज ऑफ स्टार्टअप फाउंडर्स: प्रोडक्ट, पीपल एंड परचेजिंग पावर. तो प्रोडक्ट, पीपल एंड परचेजिंग पावर. तो आपके तीन फोकस एरिया होते हैं. ये मैंने विजय को भी ऑब्जर्व किया जो हमारे फाउंडर हैं, उसके अलावा मैंने सीनियर लोगों से बातचीत करी, मैंने खुद भी देखा. तो बेसिकली आपके स्टार्टअप का यूज क्या? आपके स्टार्टअप का यूज है एक ऐसा जॉब करना जो कस्टमर चाहता है अपनी लाइफ में. तो कस्टमर अपनी लाइफ में, यूजर अपनी लाइफ में कुछ चाहता है करना, उसको आप एक जॉब कह सकते हैं. कि जैसे मैं उबर क्यों चाहता हूँ? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कोई मेरे को शॉफर ड्रिवन कार दे. मैं पेटीएम क्यों चाहता हूँ? मेरे ऑफिस में, मेरे पापा के ऑफिस में आज से 25 साल पहले एक एक क्लर्क होते थे. वो सारे वो काम करते थे जो प्रैक्टिकली आज मैं पेटीएम से 2 मिनट में कर देता हूँ. बिजली का बिल वो जमा कराते थे, टेलीफोन का बिल वो जमा करा के लाते थे लाइनों में. तो हाँ, तो आज वो प्रोडक्ट पेटीएम कर रहा है. उस जमाने में वो हमारे, उनको मोहिल साहब था उनका नाम, जो उनको मोहिल साहब कहते थे. सिर्फ यही काम था कि वो टेलीफोन के बिल, बिजली के बिल ये जमा कराना, जो आज प्रैक्टिकली पेटीएम से हम कर पा रहे हैं. देन फाउंडर का एक सेकंड फोकस एरिया होता है अच्छे लोग लेके आना. व्हाट इज द रीजन? बिकॉज किसी प्रोडक्ट हवा में तो बनेगा नहीं. आपको प्रोडक्ट बनाने के लिए अच्छे लोग चाहिए, एंड अच्छे लोगों को ऑब्वियसली आपको अच्छे पैसे देने पड़ेंगे, उनको एक ऑफिस देना पड़ेगा आपको काम करने के लिए. तो परचेजिंग पावर है. ऑल्दो ऑफिस इन द करंट सिनेरियो मेनी पीपल हैव रियलाइज्ड कि रिमोट वर्किंग हो पा रही है, ऑफिस की इतनी जरूरत नहीं है. जैसे मैं आज का ही एक एग्जांपल दूं तो आज अम्बेडकर जयंती है, हमारे यहाँ ऑफिशियली छुट्टी थी, एंड बट ड्यू टू वर्क फ्रॉम होम आज हम सुबह से काम कर रहे हैं. वी हैड अ ऑफिस मीटिंग, नाउ आई एम हैविंग दिस वेबिनार. तो आई एम नॉट फीलिंग कि छुट्टी है आज, बिकॉज यू अंडरस्टैंड कि रिमोट वर्किंग के बाद देयर इज नाउ प्रोडक्टिविटी इन दैट सेंस कि आप काम वाले दिन लगता है छुट्टी कर रहे हो और छुट्टी वाले दिन लगता है काम कर रहे हो. तो 3 स्टेजेस ऑफ स्टार्टअप लाइफ साइकिल. तो अब इसमें जो मैं मेन चीज जिस पे फोकस करूंगा, इसी स्टार्टअप्स में क्या होता है, एंटरप्रेन्योर्स को ना क्लैरिटी नहीं होती है कि किस स्टेज पे क्या करना है और क्या. इसीलिए मैंने
So there are 3 stages: search, build and scale. तो सर्च स्टेज पहले होती है, मैं आपको बताऊंगा सर्च स्टेज क्या होती है। इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। बिल्ड स्टेज में 3 स्टेप्स होते हैं और स्केल स्टेज में 3 स्टेप्स होते हैं। पेटीएम इस समय स्केलिंग स्टेज में है। हम पूरे इंडिया में अपने आप को स्केल करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं ज्यादा से ज्यादा लोग आए, हमारी सर्विसेज यूज करें। काफी सारी स्टार्टअप्स होती हैं जिन्होंने फंडिंग ले रखी होती है, वो बिल्ड कर रहे होते हैं प्रोडक्ट। उसके अलावा आप सर्च स्टेज में होती हैं काफी सारी स्टार्टअप। आई थिंक आप में से आधे लोग सर्च स्टेज में होंगे जो अभी क्या बनाना है यही सोच रहे हैं, या कुछ बनाना शुरू तो किया है बट इतना अर्ली है कि प्रोडक्ट रेडी ही नहीं है अभी। अभी आप प्रॉब्लम कौन सी सॉल्व करनी है और उसका क्या सॉल्यूशन बनाना है उसी स्टेज पे है, आइडिएशन स्टेज में। तो सर्च स्टेज में बेसिकली आइडिएशन होती है, बिल्ड स्टेज में प्रोडक्ट बिल्ड करते हैं और स्केल स्टेज में आप उसको प्रॉफिट और ग्रोथ पे फोकस करते हैं। तो आई हैव क्रिएटेड अ टूल कॉल्ड स्टार्टअप कैनवस। तो ये जो स्टार्टअप कैनवस है, ये मैंने एक टूल बनाया, उसके अंदर मैंने 3 स्टेज रखी: सर्च, बिल्ड एंड स्केल। देयर आर 3 फोकस एरियाज: प्रोडक्ट, पीपल एंड परचेजिंग पावर। और इसलिए 9 स्टेप्स बने। तो पहला स्टेप, अब ये जो स्टेप्स हैं ये जनरली आप पहले सर्च के 3 स्टेप देखेंगे, फिर बिल्ड के 3 स्टेप देखेंगे, फिर स्केल के 3 स्टेप देखेंगे। तो ये इस ऑर्डर में देखते हैं, टॉप टू डाउन, बॉटम। प्रॉब्लम सॉल्यूशन फिट सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन फिट। तो सबसे पहले कुछ बनाने से भी पहले आपको जरूरी है कि क्या प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो वो समझना, और क्या सॉल्यूशन बनाना चाह रहे हो या क्या सॉल्यूशन बन सकता है। सेकेंड थिंग इज फाउंडर्स, कि आपको सबसे जो ये जो थर्ड स्टेज के तीनों स्टेप्स हैं, ये ऑर्डर में नहीं है, ये तीनों पैरेलल में करने पड़ेंगे। तो आपको एक आइडिया आता है कि यार ये एक प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल आपको एक आइडिया आया कि बच्चे आजकल घर पे बैठे हैं, अभी एक 15-20 दिन और घर पे बैठना ही है, और आई थिंक स्कूल इमीडिएटली खुलेंगे भी नहीं जब लॉकडाउन भी खत्म होएगा। तो आपको एक आइडिया आता है कि मैं घर पे बैठ के बच्चों को पढ़ाने का एक सिस्टम बनाता हूँ, एक वेबसाइट बनाता हूँ जिसपे बच्चे घर पे बैठ के पढ़ सकते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम आपने देखी, बच्चे आजकल पढ़ नहीं रहे हैं क्योंकि स्कूल बंद है। उसका आपने एक सोल्यूशन सोचा। अब मैं उसके बाद क्या क्या करना है प्रॉब्लम और सोल्यूशन पे मैं अभी डिटेल में आऊंगा, बट उस समय ढूंढोगे, क्योंकि जब आपका आइडिया आएगा फिर यू विल फील यार मैं अकेले तो बना नहीं सकता हूँ, मुझे एक प्रोग्रामर चाहिए, मुझे कोई टीचर चाहिए कंटेंट बनाने के लिए। तो उस समय आप को फाउंडर्स ढूंढोगे। तो पैरेलल में आप सर्च फेज में प्रॉब्लम सोल्यूशन पे सोचते हो, फाउंडर्स भी ढूंढते हो और आप बूटस्ट्रैप करते हो। परचेजिंग पावर आपको उस समय जो पैसे होते हैं कोई और नहीं देगा, कोई भी इन्वेस्टर आपको पैसे नहीं देगा, बिकॉज आप सिर्फ हवा में अभी सोच रहे हो, अभी आपने कुछ बनाया नहीं है, कुछ भी वैलिडेट नहीं हुआ है, कोई कस्टमर नहीं है। रेयरली कई बार फंडिंग मिल जाती है, बट दैट इज वेरी रेयर। फंडिंग सिर्फ तब मिलती है, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए हमारे फाउंडर हैं विजय, आज उन्होंने इतनी सक्सेसफुल स्टार्टअप बना ली है, कल को हो सकता है वो कोई और स्टार्टअप बनाए। तो उस समय अगर वो बनाएंगे तो उनको ऑब्वियसली बूटस्ट्रैपिंग स्टेज में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको तो पहले दिन ही इन्वेस्टर तैयार होंगे। बट जनरली अगर आप एक नए एंटरप्रेन्योर हैं तो आपको इन्वेस्टर ढूंढने ही पड़ेंगे, और इन्वेस्टर पैसे आपको जब तक नहीं देंगे जब तक कुछ आपके पास ऑन ग्राउंड नहीं होगा। दूसरा है बिल्ड स्टेज। बिल्ड स्टेज में क्या होता है कि आपने प्रॉब्लम और सॉल्यूशन सोच ली थी, आपने प्रोडक्ट बनाया, आपने मार्केट ढूंढी और उस प्रोडक्ट को मार्केट से फिट कराया। ये जो प्रोडक्ट मार्केट फिट होती है ये एक बहुत बड़ा स्टेप होता है। इस पे मैं जब मैं इसके स्लाइड पे आऊंगा तो आपको बताऊंगा। कोर टीम एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। आप फाउंडर अकेले सारी प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते, सारी सेलिंग नहीं कर सकते, तो आपको एक कोर टीम ढूंढनी पड़ेगी जो कॉरपोरेशन और फाउंडर्स के बीच में एक स्टेप होगा। उस पर मैं आऊंगा जब, तो आपको बहुत क्लियरली बताऊंगा। और एंजल इन्वेस्टर, इसको आपको इस स्टेज पे लाना पड़ेगा। आपके पास एक प्रोडक्ट है जो कि हो सकता है प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं हुआ है, बट एटलीस्ट प्रोडक्ट है कुछ दिखाने के लिए आपके पास। तो एंजल इन्वेस्टर को क्लियर है आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, क्या सोल्यूशन आप दे रहे हो, क्या प्रोडक्ट आप बनाने वाले हो सकता है प्रोडक्ट बन गया, हो सकता है प्रोडक्ट आधा बना है। तो एंजल इन्वेस्टर इस स्टेज पे आके इन्वेस्ट करने को तैयार हो जाता है, बिकॉज इस स्टेज पे यू कैन टेल कि मैं ये बना रहा हूँ सर। फिर एंजल इन्वेस्टर जब आपको पैसे देता है तो आप ऑब्वियसली और लोगों को रख सकते हो, आप ग्रोथ के ऊपर फोकस करोगे, थोड़ी सी ग्रोथ होगी, लोग ज्यादा रखोगे। तो उस स्टेज पे वेंचर कैपिटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज आप एंजल इन्वेस्टर आपको अलग अलग एंजल्स अलग अलग टाइप के पैसे देते हैं। कोई 10 लाख देता है, कोई 50 लाख देता है, कोई 1 करोड़ देता है। बट इंडिया के कंटेक्स्ट में कोई भी एंजल आपको 2-2.5 करोड़ से ज्यादा नहीं देगा। अगर आप उससे ज्यादा पैसे मांगने जाते हो तो वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाना पड़ता है। ऑब्वियसली अगर आपको 100 लोग रखने हैं तो आपको वेंचर कैपिटलिस्ट के पास ही जाना पड़ेगा, क्योंकि 1-2 करोड़ में आजकल की दुनिया में आप 100 लोग नहीं रख सकते हो। इंडिया भर में अगर आपको कुछ भी बेचना है, फॉर एग्जांपल अगर पेटीएम को सारे पेट्रोल पंप्स पे जाना है तो हमें 200-250 आदमी की टीम कम से कम रखनी पड़ेगी। बिना उसके आप
पूरे इंडिया को कवर नहीं कर सकते ऑफलाइन वे में। तो दैट्स व्हाई यू रिक्वायर अ कॉर्पोरेशन ड्यूरिंग द ग्रोथ फेज, एंड ग्रोथ के बाद प्रॉफिट का फेज आता है, तो सर्च फेज पे आते हैं। तो पहला स्टेप है प्रॉब्लम सॉल्यूशन फिट। सी, आप लोगों को कभी भी रख सकते हैं, बट लोगों को रखने से पहले आपको प्रॉब्लम सॉल्यूशन फिट पे जाना पड़ेगा। आप को फाउंडर भी अगर बिल्कुल ही आपका कोई बहुत जिगरी दोस्त है, या आपका को फाउंडर जिगरी दोस्त के अलावा आपका कोई भाई बंदा है, तो एक अलग बात है। नहीं तो को फाउंडर ढूंढने से भी पहले आई वुड से कि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं क्या करना चाहता हूँ, क्योंकि को फाउंडर भी उसी एप्टीट्यूड का ही ढूंढोगे। अगर मेरे को मेडिकल स्टार्टअप खोलनी है तो डॉक्टर को फाउंडर ढूंढूंगा, मेरे को ई कॉमर्स की स्टार्टअप खोलनी है तो मैं ई कॉमर्स में बैकग्राउंड वाला आदमी ढूंढूंगा को फाउंडर आप ऐसे नहीं ढूंढ सकते कि आपने खोलनी फिनटेक स्टार्टअप है पर आपने डॉक्टर को अपना को फाउंडर बना लिया, या मेडिकल स्टार्टअप खोलनी है और आपने सीए को फाउंडर बना लिया। हो सकता है आपने किसी कंटेक्स्ट में बना भी सकते हो, बट ऑब्वियसली जनरली अगर आप मेडिकल स्टार्टअप खोल रहे हो तो देयर शुड बी समबडी विद सम मेडिकल नॉलेज इन योर स्टार्टअप। अगर आप एजुकेशन की स्टार्टअप खोल रहे हो तो कोई को फाउंडर कुछ एजुकेशन बैकग्राउंड का होना चाहिए। मे बी टीचर है या नहीं है, बट कुछ एजुकेशनल बैकग्राउंड जरूर होनी चाहिए। मे बी टीच फॉर इंडिया में वॉलंटियर किया हो, बट कुछ एजुकेशनल बैकग्राउंड चाहिए। तो प्रॉब्लम सॉल्यूशन फिट पे आते हैं। तो प्रॉब्लम सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि ये स्टार्टअप क्यों खोलते हैं। स्टार्टअप खोलते हैं कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो मेरे को आज भी ध्यान है, 2012 की बात है। मैं विजय जो हमारे फाउंडर हैं उनको मैं काफी साल से जानता था, दोस्ती थी। तो एक बार 2012 में मैं उनके साथ बैठा था, तो उन्होंने कहा, मैं उन दिनों मोबाइल गेम्स बनाता था अपनी स्टार्टअप में, तो बोले यार तुम्हारे से ये जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं ये कितने परसेंटेज रेवेन्यू लेते हैं। मैंने कहा 70% लेते हैं। यार देखो क्यों लेते हैं 70%, ये सिर्फ इस वजह से लेते हैं क्योंकि तुम माइक्रो पेमेंट्स पब्लिक से नहीं ले पाते हो, 10-20-100 रुपए में अपना गेम नहीं बेच पाते हो पब्लिक को डायरेक्टली। अगर कोई ऑनलाइन पेमेंट सर्विस आ जाए जो डायरेक्ट पब्लिक से पैसे इकट्ठा करने दे तुम्हें, क्या तुम उसको यूज करोगे। मैंने कहा हाँ। तो कह रहे हैं, वो कहते हैं, उन्होंने पहली बार मुझे पेटीएम क्या है बताया था। बोले देखो मैं पेटीएम बना रहा हूँ, ये यही चीज है, और ये एक दिन 10,000 करोड़ की कंपनी होगी। और उस समय मुझे लगा था कि भाई विजय बहुत सोच रहे हैं, बहुत बड़ा सोच रहे हैं। मैं तो 10,000 करोड़ जैसी अमाउंट से मुकेश अंबानी, मुकेश भाई से कंपेयर करता था। तो मुझे लगा, मैंने कहा विजय बहुत बड़ा सोच रहे हैं, क्योंकि 300-400 करोड़ की कंपनी थी उस समय पेटीएम की जो फाउंडिंग कंपनी है 197 कम्युनिकेशन। तो आई वॉज क्वाइट सरप्राइज जब 3-4 साल के बाद पेटीएम इतनी बढ़ गई। और मेरे को लगा, मैंने कहा विजय ने जो उस दिन मेरे को प्रॉब्लम बताई थी पेटीएम सॉल्व कर रही है, आज पेटीएम वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है और आज इतनी बढ़ गई है। तो प्रॉब्लम, किसी भी बड़ी स्टार्टअप को आप बढ़ाना चाहते हो तो उससे सबसे पहला मेन इंग्रेडिएंट है प्रॉब्लम। अगर आप प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पा रहे, या प्रॉब्लम सॉल्विंग पे आपका फोकस नहीं है, तो चीजें आप नहीं बना पाओगे। तो ये वो विचारधारा है। जैसे पॉलिटिकल पार्टी को स्टार्ट करता है तो कहते हैं एक विचारधारा होनी चाहिए, नहीं तो पार्टी ग्रो नहीं करती। इसी तरीके से अगर कोई स्टार्टअप आप फाउंड करते हो तो कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। अगर आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे तो आपकी स्टार्टअप ग्रो नहीं कर सकती बाद में। तो प्रॉब्लम को आप कैसे फाइंड करोगे। देखिए, एक प्रॉब्लम तो हिंदुस्तान में हमारी किस्मत बड़ी अच्छी है, वी हैव सो मेनी प्रॉब्लम। तो आई ऑलवेज से कि हमारे देश में मिलियंस ऑफ प्रॉब्लम्स है। तो एक तो प्रॉब्लम ढूंढने की प्रॉब्लम नहीं है, तो आप घर से बाहर निकलोगे, घर के अंदर प्रॉब्लम मिलेंगी, घर के बाहर मिलेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम मिलेंगी, एजुकेशनल प्रॉब्लम्स मिलेंगी, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स मिलेंगी। तो हजारों लाखों प्रॉब्लम है। आप जो प्रॉब्लम आपको अच्छी लगती है आप उस प्रॉब्लम को चूज कर लीजिए। देयर इज अ कंसेप्ट इन कॉल इकिगाई, कि जो आपको अच्छा लगता है अगर आप वही करते हो, और अगर वही चीज लोगों को भी जरूरत है तो लोग आपको पैसे देंगे, आपका करियर बन जाएगा, आप सेटिस्फाइड रहोगे, बिकॉज आपके अंदर से वही आवाज आएगी कि वही करना है मुझे। जैसे मेरे को बेसिकली रिसर्च करने का, पढ़ाने का बड़ा शौक था, तो इसी वजह से आई एम एबल टू टेक वेबिनार एक्सेट्रा। बिकॉज अगर मैं आज अम्बेडकर जयंती में बोल रहा हूँ तो आई एम नॉट फीलिंग कि मैं वर्क कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। मेरे को ये नहीं लग रहा मैं काम कर रहा हूँ, नहीं तो मैं ऑब्वियसली आज नहीं करता। तो दूसरा, फिर प्रॉब्लम कहाँ से ले सकते हो। यूनाइटेड नेशंस ने 17 SDGs बनाए हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो वो 17 गोल्स को आप पढ़ सकते हो, उनमें से किसी को चूज कर सकते हो। तीसरा, आप कोई इंडस्ट्री चूज कर सकते हो। फर्ज करिए आप गुजरात में हैं, आपने देखा कि स्पेसिफिक इंडस्ट्री के अंदर से लुब्रिकेंट्स चाहिए, तो आपने उसको थोड़ा सा फोकस किया, आपने आपने लुब्रिकेंट से रिलेटेड कोई सोल्यूशन बनाया। मे बी आपने देखा कि सोलर एनर्जी ज्यादा चाहिए आजकल, तो आपने उससे रिलेटेड कोई सोल्यूशन बनाया। तो ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक सोल्यूशंस हो गए, या ज्योग्राफी स्पेसिफिक सॉल्यूशंस हो गए, वो भी बना सकते हो।
अब सोल्यूशन जब आप बनाते हो, मैं थोड़ा इसलिए ज्यादा फोकस कर रहा हूँ बिकॉज ज्यादातर लोग जो वेबिनार्स में होते हैं वो आइडिएशन स्टेज पे होते हैं या बड़ी रिलेटिवली अर्ली स्टेज पे होते हैं, तो ये मैं शुरू वाली स्टेजेस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करूंगा। तो सॉल्यूशन कहाँ से शुरू करेंगे? तो सबसे पहले आपने प्रॉब्लम स्टडी कर ली, अब आपको एक सॉल्यूशन बनाना है। सॉल्यूशन हर एक आदमी की इच्छा होती है मैं ऐसा सॉल्यूशन बनाऊं जो एप्पल के आईफोन जैसा हो, या कोई ऐसी चीज हो जो हम देखते हैं गूगल जैसी चीज हो जाए। पर मैं आपको बताता हूँ कि सॉल्यूशन हमेशा ना शुरुआत होती है प्रोडक्ट से। तो अमेजन में ये मैंने पढ़ा कि अमेजन में ये बेस्ट प्रैक्टिस है, दे से कि आप कुछ भी बनाओ उससे पहले रिलीज लिखो उस प्रोडक्ट का। तो आप एक फेक प्रोडक्ट दिमाग, मतलब आप एक प्रोडक्ट सोचो दिमाग में, फेक इसलिए कह रहे हैं कि अभी ये प्रोडक्ट बना नहीं है, अभी आप हवा में सोच रहे हो, अब आप शेख चिल्ली की तरह सोच रहे हो मैं ये बनाऊंगा। पर अब आपको सबसे पहली चीज ये करनी है, आप उसका एक प्रेस रिलीज बनाओ, आप उसका एक डेमो वेबसाइट, मतलब आप एक वेबसाइट कोड करके नहीं कर, आप पेपर पे एक वेब पेज बनाओ पेपर पे। उससे क्या होगा कि आपको क्लैरिटी होगी कि ये ऑडियंस को सोल्यूशन कैसे दिखाओगे। सेकंड स्टेप होगा आपको एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आई डोंट नो सबको पता है या नहीं, बट स्टार्टअप के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है लीन स्टार्टअप, उसके अंदर ये कंसेप्ट आया मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। देखिए सब एप्पल की तरह आईफोन रिलीज करना चाहते हैं, सब चाहते हैं मैं स्टीव जॉब्स की तरह स्टेज पे जाऊं, मीडिया मेरे प्रोडक्ट को कवर करे, बट ऐसा हकीकत में होता नहीं। तो हकीकत में क्या होता है कि आपको एक स्मॉल प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा जो मिनिमम फीचर्स के साथ होगा, जो मिनिमम कस्टमर को ठीक लगे, और वायबल मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं उबर शुरू कर रहा हूँ तो मैं उबर 1000 टैक्सी के साथ नहीं शुरू कर सकता। तो हो सकता है मैं एक टैक्सी शुरू करूं अपनी, और मैं लोगों को कहूं आप मुझे व्हाट्सएप पे बुलाइए, मैं जाके आपके घर आपको लेके आपको जहां आप कहेंगे मैं वहां लेके जाऊंगा। तो ना तो मैंने वेबसाइट बनाई, ना मैंने कोई ऐप बनाई, एक टैक्सी ली है, वो भी हो सकता है किराए पे ले लूंगा थोड़े दिन के लिए, और खुद ही कार चला रहा हूँ, मैं किसी से ड्राइवर से भी कार नहीं चलवा रहा हूँ। तो उससे क्या होगा, उससे ये फायदा होता है कि मैं वैलिडेट कर पाता हूँ लोगों से मिलके, लोगों को दिखा के प्रोडक्ट। देखिए आप किसी भी कस्टमर से पूछोगे, अगर मैं अपने कजन से पूछता कि क्या बच्चे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, तो वो क्या कहेगा, पहले क्या कहता, आज से 2 महीने पहले कहता नहीं ऑनलाइन की क्या जरूरत है, ऑफलाइन अच्छा है अगर छोटे बच्चे हैं तो। आज कहेगा हाँ ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं। 2 महीने बाद हो सकता है कोरोना का लॉकडाउन खत्म हो जाए, कहेगा कि नहीं अच्छा मेरे को ऑनलाइन ही, मैं तो ऑफलाइन ही मिलना चाहता हूँ, बच्चे ऑनलाइन पढ़ते नहीं है। तो इस तरीके से वैलिडेशन नहीं होती। वैलिडेशन होती है जब मैं खुद एक्चुअल प्रोडक्ट मार्केट में लेके जाता हूँ। मैंने एक फन टू डू लैब से एग्जांपल दूं, तो हमने क्या करा कि हमने पोस्टर्स बनाए, और हमने वो पोस्टर, अब जब तक हमारी वेबसाइट नहीं बनी थी, क्योंकि मैं तो पेटीएम में आ गया था तो मेरे पास तो टाइम था नहीं, एक दो लोग जो मेरे पुराने थे स्टार्टअप में उनको मैंने इसमें जॉब दे दी थी, तो वो वेबसाइट बनाने में टाइम लगता था, तो मैंने कहा वेबसाइट को छोड़ो, पिंटरेस्ट पे डाल दो वो पोस्टर। अब आज ये हकीकत है कि 41,000 व्यूअर्स हैं मंथली उन पोस्टर्स के पिंटरेस्ट पे, विदाउट एनी प्रमोशन, विदाउट एनी एसईओ, विदाउट एनी सोशल मीडिया मार्केटिंग। उसका रीजन है मेरे पास टाइम ही नहीं है सोशल मीडिया की मार्केटिंग करने का या एसईओ करने का। मैं उनको ये कहता हूँ मैं तो पेटीएम में ही हूँ, मेरे पास तो टाइम है नहीं, हम्म। तुम्हें जो डालना है डालते रहो बैठ के पिंटरेस्ट पे, ज्यादा से ज्यादा मैं अपलोड कर सकता हूँ थोड़ा बहुत टाइम हो, उससे ज्यादा तो मेरे पास है नहीं। तो व्हाट आई एम सेइंग इज सॉल्यूशन को मैं वैलिडेट कर रहा हूँ। अब क्योंकि पिंटरेस्ट पे 41,000 व्यूअर्स हैं, तो ऑब्वियसली जब भी मैं वेबसाइट बनाऊंगा तो वेबसाइट पे भी व्यूअर होंगे। ऑब्वियसली एक डिमांड है, हमें दिख रहा है कि लोग कहाँ से आते हैं, लोग गूगल सर्च से आते हैं, इमेज सर्च से। तो लोग अगर इमेज सर्च से आते हैं तो हमारी वेबसाइट शुड भी इमेज सर्च फ्रेंडली। तो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट आपको बहुत सारी चीजें सिखा के जाते हैं। तीसरी चीज फिर जो निकल के आती है वो ये आती है कि आपने, एक और मैं एग्जांपल देता हूँ, खाने का एग्जांपल दिया। फर्ज करिए एक प्रॉब्लम है कि लोगों को फास्ट फूड खाना है जो हेल्दी है। तो अब आपने फास्ट फूड खाना है हेल्दी है वो सोचा, अब आपने कई आइडिया सोचे, कई सॉल्यूशन सोचे, उसके बाद आपने एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाया। फॉर एग्जांपल आपने कोई बर्गर बनाया जिसके अंदर पैटी आलू की जगह या नॉनवेज की जगह आपने पैटी बनाई पौष्टिक चीजों की, समझ लीजिए आपने इस टाइप की चीज बनाई, हरी सब्जियों की कुछ पैटी बनाई। अब आपने वो सॉल्यूशन लोगों को दिया, अब आपने कितने लोगों को देना है? देखिए इस समय आप प्रोडक्ट मार्केट फिट के लिए नहीं जा रहे, आप प्रॉब्लम सॉल्यूशन फिट के लिए जा रहे हो। आपको अगर आप सिर्फ 10-20 लोगों को भी ले आते हो क्वालिटेटिवली और उनसे भी फीडबैक ले लेते हो तो वो भी काफी अच्छी फीडबैक है। तो फॉर एग्जाम्पल मिनिमम वायबल प्रोडक्ट क्या होगा? मिनिमम वायबल प्रोडक्ट इसमें बड़ा सिंपल है, आप किसी भी मेले में, दिवाली मेले में अपना बर्गर का स्टॉल लगा लो, आपका मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बिक गया। अगर 100-200 लोगों ने आपका बर्गर खरीद लिया और उसके बाद उन्होंने आपको एक
इनपुट दी कि आपका बर्गर, मैंने मतलब 100 लोगों ने बर्गर खाया और 50 लोगों ने बर्गर की तारीफ करी, 20-30 लोगों ने कहा ठीक है ओके था, 5-10 लोगों ने कहा नहीं यार मेरे को तो वो आलू का बर्गर ही, या मेरे को तो नॉनवेज वाला बर्गर ही पसंद है, तो उस पर्टिकुलर केस में आपको एक फीडबैक मिल जाएगी। बट अगर 50-60 लोगों ने अच्छा नहीं कहा, समझ लीजिए 95 लोगों ने कहा घटिया है बर्गर, ये तो बेकार है, मेरे को तो टेस्टी पसंद नहीं है, ये तो आइडिया बेकार है, तो आपको समझ आ जाएगा यार ये तो आइडिया बेकार है। उसके बाद एक सॉल्यूशन का पैटर्न बनाना पड़ेगा। पैटर्न ये है कि फर्ज करिए आपने गुजरात में बर्गर बनाया, अब गुजरात का एक कुजीन है, अब मैं मतलब कोई जनरल कमेंट नहीं करना चाह रहा, बट समझ लीजिए गुजरात में एक कुजीन है, आपने उसमें खाकरे वगैरह डाल दिए बर्गर में, तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, सिर्फ एक बनाना चाह रहा हूँ, और आपने कहा देखा कि यार ये गुजरात में तो बड़ा चल रहा है। अब आप गए तमिलनाडु, तमिलनाडु में आपने स्टॉल लगाया और तमिलनाडु में लोग खाकरे वाला बर्गर नहीं ले रहे, लोग इडली वाला बर्गर ले रहे हैं। फिर आप पंजाब गए, पंजाब में वो कह रहे हैं हमें इडली और खाकरे का बर्गर नहीं चाहिए, हम तो आलू का बर्गर ही चाहते हैं। तो आपको ये समझ आएगा देयर इज अ पैटर्न। पैटर्न ये है कि लोग बर्गर तो खाना चाह रहे हैं, पर वो बर्गर के अंदर की आइटम चेंज हो जाती है। तो आप मैकडोनल्ड्स को देखो, मैकडोनल्ड अगर 100 कंट्री में है तो हर जगह अलग अलग टाइप की पैटी मिलती है। इंडिया में आलू टिक्की बर्गर मिलता है, अमेरिका में आलू टिक्की बर्गर मांग के भी नहीं मिलता। तो पॉइंट ये है कि एक पैटर्न निकल के आएगा, तो आपका सॉल्यूशन जो होगा ना वो एक पैटर्न निकलेगा, एक एक हार्ड सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, क्योंकि दुनिया में इतने हजारों तरीके के लोग हैं, दुनिया में इतना सब कुछ चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी रोज चेंज हो रही है, तो आपका पैटर्न है ना फिक्स पैटर्न नहीं निकलेगा। पैटर्न हमेशा आपका इस तरीके का निकलेगा कि एक ब्रॉड पैटर्न सेम निकलेगा। जैसे अगर मुझे पता है मैं ऑनलाइन पढ़ा सकता हूँ तो मैं जूम यूज कर सकता हूँ, मैं माइक्रोसॉफ्ट टीम्स यूज कर सकता हूँ, मैं वेबसाइट पे पढ़ा सकता हूँ, मैं कोई सॉफ्टवेयर बना के पढ़ा सकता हूँ, मोबाइल ऐप पे पढ़ा सकता हूँ, बट पॉइंट ये है कि मैं पढ़ाऊंगा तो ऑनलाइन देयर वुड बी अ इंस्ट्रक्टर, देयर वुड बी सम अटेंडीज, देयर वुड बी अ वीडियो स्क्रीन, देयर वुड बी अ प्रेजेंटेशन स्क्रीन। ये पैटर्न निकल के आएगा। ये पैटर्न निकालना प्रॉब्लम सॉल्यूशन फिट है। अगर आप वो पैटर्न निकाल पा रहे हो तो आपने फर्स्ट स्टेज पार कर ली। आप इन्वेस्टर के पास जा सकते हो, आप कह सकते हो सर मैंने 100 लोगों को ये चीज करी, ये हुआ। अगर आप बहुत ज्यादा कंज्यूमर स्पेस में हो तो जो आपका इन्वेस्टर है वो कहेगा मुझे 10,000 लोगों से वैलिडेशन मिल पाओ। अगर आप बिजनेस बिजनेस में हो तो 8-10 कंपनी की वैलिडेशन भी बहुत है। तो वैलिडेशन बहुत जरूरी है, और एक सॉल्यूशन का पैटर्न निकलेगा, हार्डकोर सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। जो मैं बार बार ये इसलिए बताना चाह रहा हूँ बिकॉज कई लोगों को लगता है कि मैंने जो बना दिया वही फाइनल है। वो फाइनल नहीं है, आपको आइटरेट करना पड़ेगा, आपको एक पैटर्न ढूंढना पड़ेगा, और वो पैटर्न पे फोकस होना चाहिए, लर्निंग पे फोकस होना चाहिए। आपको किसी भी हालत में एक चीज पे फोकस नहीं होना चाहिए। आपको ये फोकस नहीं करना चाहिए कि मैंने तो बस यही वाला बर्गर बेचना है, या मैंने तो आलू का ही बर्गर बेचना है। अगर आप उस थ्योरी से चलोगे तो फिर आप स्केल नहीं हो पाओगे, बिकॉज जब आप ग्रो करोगे अलग अलग कल्चर्स, अलग अलग सिचुएशंस में चीजें जाएंगी। आपको जैसे उबर का ही फॉर एग्जांपल देता हूँ, इंडिया के अंदर उबर कैश लेता है, अमेरिका में उबर कैश नहीं लेता है। तो एक पैटर्न निकला है कि मैं पेमेंट लूंगा, ये एक पैटर्न निकला कि एक टैक्सी होगी, उसमें क्लिक होएगी, एक टैक्सी आएगी, पेमेंट लूंगा। फिर वो पेमेंट लेने के तरीके पर अलग अलग हो सकते हैं। ऑब्वियसली इंडिया में क्रेडिट कार्ड वाले लोग ही कम है। इंडिया में सबसे पहले उबर, पेटीएम को सबसे पहले ट्रैक्शन मिली उबर से। उबर ने पेटीएम इंटीग्रेट किया बिकॉज उबर वांटेड अ वन क्लिक पेमेंट, जो क्रेडिट कार्ड में ओटीपी की वजह से नहीं हो पा रही। तो अब सेकंड स्टेप जो है, ये मैं सेकंड ऑर्डर में नहीं कह रहा, बोलने के लिहाज से सेकंड कह रहा हूँ, ये बूटस्ट्रैपिंग फाउंडर्स और प्रॉब्लम सॉल्यूशन फिट पैरेलल में होता है। आप ये नहीं कह सकते कि पहले मैं सॉल्यूशन बनाऊंगा फिर फाउंडर ढूंढूंगा, नहीं तो फिर को फाउंडर ढूंढने का फायदा क्या हुआ। हो सकता है आपको प्रॉब्लम की क्लैरिटी होती है, फिर आप को फाउंडर उस स्टेज पे ढूंढते हो। कई बार सॉल्यूशन ढूंढने के बाद भी को फाउंडर ढूंढते हो, कई बार को फाउंडर इमीडिएट नहीं मिलता। और को फाउंडर ढूंढने में आपको बहुत मेहनत करनी चाहिए, बिकॉज ये मैं कई बार एग्जाम्पल देता हूँ कि, और ये मैंने एक वीडियो में सुना था एक दिन, अमेरिकन का वीडियो था, तो ही सेड कि अगर आप शादी करते हो और को फाउंडर को ढूंढते हो तो बीवी ढूंढने जैसा या हस्बैंड ढूंढने जैसा ही है। इनफैक्ट और ज्यादा है, क्योंकि अगर आपकी स्टार्टअप चल जाती है तो आपको 15-20 साल उसके साथ ही रहना है। अमेरिका में जैसे वो स्पीकर बोल रहा था, बोला एटलीस्ट शादी में तो आप डाइवोर्स दे सकते हो, बट को फाउंडर को डाइवोर्स भी नहीं दे सकता अगर तुम्हारी स्टार्टअप हिट होगी। अगर तुम डाइवोर्स दोगे उसको तो फिर स्टार्टअप फेल हो जाएगी। एंड अगर किसी ने सोशल मीडिया पे वो पिक्चर देखी है, जकरबर्ग के ऊपर पिक्चर बनी थी, तो को फाउंडर का हटना काफी अगली हो सकता है। तो आई वुड से कि आप पहले तो को फाउंडर को ढूंढो। अब को फाउंडर के अंदर क्या चीजें होनी चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे मैंने बहुत रिसर्च की, बिकॉज मैं भी थोड़ा एडवर्टाइज था पहले, एंड थोड़ा ह्यूमंस कैसे सोचते हैं वो उस चीज की क्लैरिटी नहीं थी।
मैंने इस पे काफी बुक्स पढ़ी, जैसे मैं बता रहा था, मैंने 190 बुक पढ़ी, कुछ स्टार्टअप पे थी, कुछ डिजाइन पे थी, कुछ ह्यूमन नेचर पे थी। तो मेरे को 2-3 चीजें निकल के आई। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट निकल के आया है कि किसी भी इंसान को समझने के लिए आपको उसकी 3 चीजों पे फोकस करना है, हेड, हार्ट और हैंड। हेड, हार्ट और हैंड। तो हेड क्या है, उसका दिमाग क्या है, अगर आप वो समझ सकते हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप उसके दिल में क्या है वो समझ सकते हो तो प्रॉब्लम नहीं होगी। हाथ में क्या लेके आ रहा है, क्या वो पैसे लेके आ रहा है, क्या वो एक्सपीरियंस लेके आ रहा है, क्या वो प्रेस्टीज लेके आ रहा है। फर्ज करिए मैं किसी स्टार्टअप में जाता हूँ तो एक ब्रांड जाएगा कि मैं पेटीएम में वाइस प्रेसिडेंट हूँ, अगर मैं वो छोड़ के आपकी स्टार्टअप ज्वाइन करता हूँ तो एक ब्रांड है। आप किसी प्रोग्रामर को रखते हो तो वो एक्सपीरियंस लेके आ रहा है, या हो सकता है आप किसी को ऐसे आदमी को पार्टनर बना रहे हो जो पैसे लेके आ रहा है, आपको लग रहा है कि यार पैसे तो यही ला सकते हैं, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। तो आपको ये समझना है, हेड, हेड के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। ज्यादा टाइम नहीं है तो मैं आपको थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस पूरी तरीके से तो नहीं बता पाऊंगा, बट 8 तरीके की इंटेलिजेंस होती है, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस कहती है। जो ज्यादातर जिसको हम आईक्यू कहते हैं वो होती है लॉजिकल इंटेलिजेंस और लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। अब ये मैं थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, मैंने बुक तो पहले पढ़ी थी पेटीएम ज्वाइन करने से पहले। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज ये थी, मैं विजय को रिपोर्ट करता था, पेटीएम के जो फाउंडर है, मैंने देखा कि विजय के अंदर वो 8 इंटेलिजेंस हैं जो इवन ऑथर ने कहा है कि 8 बड़ी रेयरली होती है किसी के अंदर। और विजय के सक्सेस का फॉर्मूला वो 8 इंटेलिजेंस है, मैंने देखा। तो 8 क्या क्या है? लॉजिकल इंटेलिजेंस, आप लॉजिकली सोच रहे हो, इतना ज्यादा इमोशनली नहीं सोच रहे कि आपको लॉजिक ही समझ नहीं आ रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस समय गवर्नमेंट ने लॉकडाउन करा है, तो बहुत लोग कोस भी रहे हैं सरकार को, क्या जरूरत थी लॉकडाउन करने की। बट अगर जो आज मोदी जी ने कहा कि जान है तो जहान है, कि पैसे तो 2 महीने बाद भी कमा लेंगे अगर जिंदा रहे तो, बट एक बार अगर हजारों लोगों को हो गया या लाखों लोगों को हो गया तो ऑब्वियसली मतलब आपको लॉजिकली समझना पड़ेगा। तो लॉजिक के बाद फिर आपको लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होनी चाहिए। अगर इसको ही आप देखो, कोई भी सक्सेसफुल आदमी होता है, अच्छी स्पीच दे सकता होता है, जनरली अच्छे लेटर्स लिखता होता है, तो उसके अंदर एक लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होती है। अच्छा वेबसाइट का कंटेंट नहीं आप बनाओगे तो कोई आपकी वेबसाइट पे नहीं आएगा। तीसरा, 3 इंटेलिजेंस और होती हैं जो बीजे के अंदर है, और जो होती है थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस में, उसका कितना रिलेशन एंटरप्रेन्योरशिप से है वो मैं कमेंट नहीं करना चाहता। एक है काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, डांस की इंटेलिजेंस, एक है म्यूजिकल इंटेलिजेंस, और एक है स्पेशल इंटेलिजेंस, जो कि अगर आप कार ड्राइविंग कर रहे हो या ड्राइंग कर रहे हो उसमें यूज होती है। अब 3 और इंटेलिजेंस है जो बहुत क्रिटिकल है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। वो कौन सी है? वो है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस। मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ? मैंने विजय को देखा, विजय पैसे के लिए काम नहीं कर रहे। लोगों को लगेगा वो बिलियनर है, पैसे के लिए काम करते हैं। मैंने देखा वो पैसे के लिए काम नहीं करते, वो देश चेंज करना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि मेरा देश अमेरिका जितना हो या अमेरिका से आगे जाए। उनकी एक सोच है, वो सोच उनको ड्राइव करती है काम करने के लिए। तो क्या आप दुनिया चेंज करने के लिए काम कर रहे हो? आपका को फाउंडर पैसे के लिए काम कर रहा है या दुनिया चेंज करने के लिए काम कर रहा है? अब ये बहुत जरूरी है। अगर आप पैसे के लिए काम कर रहे हो और आपका को फाउंडर दुनिया चेंज करने के लिए काम कर रहा है, बाद में झगड़ा जरूर होगा। एक और इंटेलिजेंस है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, एबिलिटी टू सी पैटर्न्स की 10 साल बाद क्या होने वाला है। तो विजय जब अपने बोर्ड के पास गए, बोले मुझे 5 करोड़ रुपए चाहिए पेटीएम खोलने के लिए, बोर्ड ने कहा ये बेकार आइडिया है। हंसी आएगी आपको सुन के, बट बोर्ड ने कहा ये बेकार आइडिया है। हिंदुस्तान में कौन स्मार्टफोन पे ऑनलाइन पेमेंट्स करेगा? सब 2 नंबर, इंडिया में इतने लोग 2 नंबर के पैसे यूज करते हैं, इतने लोग कैश में यूज करते हैं, इतने लोग गरीब हैं स्मार्टफोन ऑन नहीं कर सकते। विजय ने कहा नहीं, मुझे लगता है आज से 10 साल बाद सब स्मार्टफोन के थ्रू मोबाइल पेमेंट कर रहे होंगे। एंड हाउ करेक्ट ही वॉज। इसी तरीके से जब मैंने मोबाइल ऐप्स बनानी शुरू करी, मेरी पहली बुक मोबाइल ऐप डेवलपमेंट पे टेक्निकल बुक 2003 में लॉन्च हुई थी, और मैं तो सीए कर रहा था, पर इट वॉज अ टेक्निकल इंजीनियरिंग की बुक 2003 में लॉन्च हुई। जब मैं उस समय किसी को कहता था मोबाइल ऐप दुनिया को चेंज कर देंगे, थे मेरे ऊपर। और आप आज देखिए, पहले 2-4 साल बड़ी मुश्किल भी हुई, क्योंकि 2-4 साल कोई क्लाइंट ही नहीं मिला, कोई ऐप बनवाते ही नहीं था, क्योंकि कोई डिमांड ही नहीं थी। बट फायदा यह हुआ 2006 में मेरे को विजय मिले। सबसे पहले विजय ने भी मेरे को कॉन्ट्रैक्ट 2012 में दिया, 6 साल के बाद, जब 6 साल हो गए थे जाने पे। तो मैं आपको बता रहा हूँ, शुरुआत में हो सकता है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस ये होती है कि जब इंसान जंगलों में रहता था, तो अगर आप शेर के पगमार्क्स देखते हो और आपको समझ आ जाता है यहाँ शेर यहाँ से गया है, तो अब आप वहां खड़े रहोगे या आप वहां से भागोगे? आप वहां से भागोगे ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे 1 महीने पहले एक्सपोनेंशियल कर्व देख के मैंने अपने आसपास वालों सबको प्रिडिक्ट कर दिया था कि लॉकडाउन होगा, एंड लोग मेरे ऊपर हंस रहे थे, नहीं लॉकडाउन नहीं होगा। इनफैक्ट मेरी वाइफ तक मेरे ऊपर यकीन नहीं करी थी, बोली ऐसा कैसे हो सकता है, बिकॉज कभी हमारे हमारे जीवन में कभी ये लॉकडाउन हुआ नहीं था। पर मैंने कहा लॉकडाउन नहीं होगा तो लाखों लोग मरेंगे, तो इसलिए मुझे तो लगता है कि मोदी जी लॉकडाउन करेंगे।
और यही हुआ। तो ये नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस होती है। ये आठों चीज अगर आप देखोगे बड़ी जरूरी है। बिकॉज मैं एक महीने पहले का एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं हजारों लोगों को, मैं अपने आसपास के मतलब हजारों तो नहीं सैकड़ों लोगों को बता रहा था कि लॉकडाउन होगा, तैयारी कर लो, लॉकडाउन होगा, वर्क फ्रॉम होम की तैयारी कर लो। काफी चीजें मैंने लोगों को बताई थी, लोग नहीं मान रहे थे। और कई बार इसके ऊपर हल्की सी आर्गुमेंट भी हुई। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, 12-13 मार्च की बात है। मेरा कजन आया, he said यार सब बड़े पेसिमिस्टिक हो रहे हैं, मैं तेरे घर आया हूँ, तू तो मेरे को और भी ज्यादा पेसिमिस्टिक कर रहा है। लोग तो फिर भी कह रहे थे कि कोरोना से नुकसान होगा, शेयर मार्केट गिरेगी, तूने तो कह दिया लॉकडाउन ही होगा। बट व्हाट आई एम सेइंग इज ये नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको एबिलिटी टू सी पैटर्न्स है। बट अगर आपका को फाउंडर ये नहीं देख पाएगा तो आपका झगड़ा होगा। तो बेसिकली आपको को फाउंडर ऐसा ढूंढना है जो आपके हिसाब से सोचे, मे बी उसकी सोच अलग हो पर कॉम्प्लीमेंट्री सोच हो। बेसिक प्रॉब्लम जो लोगों के साथ होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मैं किसी को एक महीने पहले बता रहा था लॉकडाउन होगा, उसके लिए प्रिपेयर करो, और अगर मेरा को फाउंडर कहेगा नहीं यार ये तो बेकार है, तू तो मार्केटिंग पे पैसे स्पेंड कर, अब वी आर ग्रो, हमारे टारगेट्स हैं, तो आप देखिए वो सारे के सारे पैसे मार्केटिंग वाले एक महीने पहले जो स्पेंड करे होते वेस्ट हो जाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। एंड इसीलिए इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस भी चाहिए। जैसे विजय को कन्विंस करना पड़ा लोगों को, बाद में ऑब्वियसली बोर्ड कन्विंस हो गया, पेटीएम तभी खुली, पर उस कन्विंसिंग के लिए उनको इंटरपर्सनल स्किल्स अपने यूज करने पड़े। तो वो इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत ही जरूरी हैं आप लोगों के लिए। तो को फाउंडर का जैसे मैंने बताया, हेड के लिए हेड के लिए जो बेस्ट थ्योरी है दैट इज थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। हार्ट के लिए जरूरी है आप उसको देखिए सामने वाला ईमानदार भी है या नहीं, इंटीग्रिटी है या नहीं, उसकी वैल्यूज क्या है। एक बड़ा सिंपल चीज है कि देखिए वैल्यूज अच्छी बुरी नहीं मैं कह रहा, हर एक आदमी की अपनी सोच होती है। आई एम नॉट डूइंग अ वैल्यू जजमेंट। बट फर्ज करिए मैं वेजिटेरियन हूँ और मैंने अपने को फाउंडर को रखा और उसने कहा यार तू तो चिकन बर्गर बेचना शुरू कर, और मैं थोड़ा ऑब्वियसली उसके अगेंस्ट होगा। तो आई एम नॉट सेइंग कि वो गलत है या मैं ठीक हूँ। बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि आपको ये देखना है कि आपका को फाउंडर जो है वो रख पा रहे हैं। देखा मेरे फादर की काफी साल पहले डेथ हो गई थी, बट जब वो बिजनेस करते थे तो मैंने देखा उनके डेथ होने के बाद उनके पार्टनर्स को मैंने थोड़ा हमने देखा और उन्होंने काफी लॉस वगैरह दिए। तो व्हाट आई रियलाइज वाज कि तो जो मेरे फादर के पार्टनर्स थे वो लॉन्ग टर्म सोचते थे, और मेरे फादर लॉन्ग टर्म सोचते थे। एंड उसका एंड रिजल्ट ये निकल के आता है कि वो फ्रिक्शन शुरू हो जाती है। बिकॉज आप कहोगे अगले महीने के पैसे कैसे मिलेंगे, पर जो अगर आप विजनरी होगे तो आप सोचोगे नहीं यार अभी लॉस ले लेते हैं, 1 साल बाद फायदा होगा, 2 साल बाद फायदा होगा। तो ये बहुत जरूरी है। वैल्यूज जैसे मैंने बताया बहुत जरूरी है, इंटीग्रिटी बहुत जरूरी है, और इन हैंड आप क्या लेके आ रहे हो। देन वी कम टू बूटस्ट्रैपिंग। अब बूटस्ट्रैपिंग क्यों जरूरी है? बिकॉज आपको कोई और तो पैसे देगा नहीं, तो या तो आपका मम्मी पापा पैसे देंगे। अगर आपको मम्मी पापा पैसे नहीं दे रहे तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन है? आपके पास ऑप्शन है आप अपनी जॉब में से कुछ पैसे निकाल लीजिए। बट अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको पैसे मिल रहे हैं, पर अगर आपने कितने पैसे जोड़े हैं वो जरूरी है। तो मेरा ये मानना है कि इंडिया के अंदर कम से कम आपके पास 1-2 साल के पैसे होने चाहिए तब जॉब छोड़े। काफी लोग मैंने देखा 3 महीने 6 महीने के पैसे इकट्ठे करके जॉब छोड़ देते हैं इंडिया में, क्योंकि देखिए ज्यादातर जब आपको टीम आप रखोगे वो ए लेवल टीम बहुत रेयरली होगी, क्योंकि इंडिया में इतना एलिटिस्ट थॉट प्रोसेस है कि अगर आप इंजीनियर रखने जाओगे तो आपको आईआईटी का इंजीनियर समझेगा नहीं। प्रैक्टिकल रियलिटी ये होगी कि आप किसी ऐसे आदमी को रखोगे जो एवरेज होगा। एंड देन मे बी आपकी टीम को आप मोटिवेट करोगे, या वो आदमी पढ़ाई में वैसे अच्छा होगा इंजीनियर, तो वो सेल्फ स्टडी करके साल 2 साल। तो आप अगर आप देखिए ऑब्वियसली अगर आप कोई स्टार्टअप खोलते हो तो आपको सीधा गूगल का एम्प्लॉय तो मिलेगा नहीं आपको एज एम्प्लॉय। तो आपको जो भी आप एम्प्लॉय रखोगे वो जनरली उतना मतलब अच्छा इंजीनियर या उतना अच्छा डिजाइनर या उतना अच्छा प्रोडक्ट मैनेजर नहीं होगा। तो आपको 1-1.5 साल 2 साल हो सकता है लग जाए। आई एम नॉट सेइंग कि वो लोग होशियार नहीं है। व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर एक आदमी पेटीएम का प्रोडक्ट मैनेजर है या गूगल का प्रोडक्ट मैनेजर है, उसको आप रखते हो तो वो 3 महीने में वो ऐप बना सकता है, जो एक नया आदमी हो सकता है 1.5-2 साल में बनाए जोश के साथ। बिना जोश वाला एम्प्लॉय तो रखना ही नहीं है। बट अगर आप जोश वाला एम्प्लॉय भी रखते हो तो वो जोश वाले एम्प्लॉय को सब कुछ सीखना तो पड़ेगा ना। तो वो सीखने में 1-1.5 साल लग जाते हैं। तो
इसलिए आपको बूटस्ट्रैपिंग करने के लिए कम से कम आई वुड एडवाइज 1 साल तो मिनिमम है। जब आप जॉब में 1 साल के पैसे इकट्ठे कर लो तभी बूटस्ट्रैपिंग सोच के जॉब छोड़ के फुल टाइम लगना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट छोड़ के अपनी स्टार्टअप में। मिनिमम 1 साल, 2 साल इज बेटर, क्योंकि 2 साल में फिर आपको टेंशन नहीं रहेगी। मैं किसी को जानता हूँ जिसने अपनी जॉब छोड़ दी, 1 साल के पैसे इकट्ठे भी कर लिए थे, 6 महीने हो गए थे, अभी 1 डेढ़ महीने पहले वो मेरे से मिला, कह रहा सर 6 महीने हो गए हैं, अब मेरे को टेंशन होने लग गई है, बिकॉज अभी भी कहीं दिख नहीं रहा पैसे आते हुए। एंड एक और प्रॉब्लम है कि हो सकता है साल भर में आपका प्रोडक्ट भी बन जाए, बट सीधा प्रोडक्ट बनते ही पैसे नहीं आते। तो आपको ये बहुत जरूरी है कि आपको बूटस्ट्रैपिंग में अगर आप 2 साल के पैसे होंगे तो आपको टेंशन नहीं होगी, और आप शांति से 1 डेढ़ साल प्रोडक्ट बना के फिर 6-8 महीने में उसको थोड़ा बहुत कमर्शलाइज कर लो। फिर आते हैं हम सेकंड स्टेज पे, बिल्ड। तो अब इसमें हमें फोर्थ स्टेप है प्रोडक्ट मार्केट फिट। प्रोडक्ट मार्केट फिट में देखिए दो चीजें हैं, प्रोडक्ट और मार्केट। तो प्रोडक्ट किसके बेसिस पे बनाना है, जो हमने सॉल्यूशन का पैटर्न बना लिया था, अब हम इन्वेस्टर के पास जाएंगे, अगर इन्वेस्टर हमें पैसे दे देगा या इन्वेस्टर से फीडबैक लेंगे, उसके बेसिस पे हम प्रोडक्ट बनाएंगे। लीन स्टार्टअप बुक में एक बड़ा अच्छा प्रोसेस बता रखा है, बिल्ड मेजर लर्न, एक लूप बना रखी है, बिल्ड मेजर लर्न। आपको क्या करना है, आपको प्रोडक्ट बनाना है, बिल्ड पहले बिल्ड करना है, फिर आपको मेजर करना है एनालिटिक्स की लोग उसको यूज भी कर रहे हैं नहीं, और फिर आपको लर्न करना है, और लर्न के बेसिस पे फिर आपको अपडेट करना है। तो ये आप देखेंगे कि जब आप कोई भी चीज करते हैं तो आपने मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बना लिया। अब वो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट आपने बना तो लिया, मार्केट में लेके गए, और समझ लीजिए ऊबर जब पहले दिन आया तो ऊबर लेके गया मार्केट में क्रेडिट कार्ड के साथ इंडिया में। अब क्रेडिट कार्ड के साथ जब वो इंडिया में लेके गए तो लोगों ने कहा सर हमारे पास तो क्रेडिट कार्ड ही नहीं है, अब पे कैसे करें, कैश करते हैं। पर ऊबर ने कहा अगर कैश ही पे करोगे तो फिर ऊबर के सर्वर वाला सिस्टम का फायदा क्या हुआ, क्योंकि फिर तो आप डायरेक्ट ही पे कर रहे हो, ऊबर कहाँ से आया उसको। तो दैट्स व्हाई दे टाइड अप विद पेटीएम। उन्होंने ढूंढा कि लोग ऑनलाइन पेमेंट उन्होंने देखा पेटीएम मंथली ऑनलाइन पेमेंट करना, उन्होंने पेटीएम से टाइप करी। और ये मैं आपको 2015 के अराउंड की बात बता रहा हूँ। तो प्रोडक्ट आपको बिल्ड मेजर लर्न करना पड़ेगा। आप ये नहीं सोच सकते कि चाहे गूगल हो, चाहे उबर हो, चाहे पेटीएम हो, ये कोई भी वन शॉट में प्रोडक्ट नहीं बनाता। ये ऐसा नहीं होता, वो जो स्टीव जॉब्स दिखाता है कि मैं दिखाता था कि मैं आईफोन आज लॉन्च कर रहा हूँ, जो मैंने बनाया है वो ऐसे नहीं बनता, उसमें पहले प्रोटोटाइपिंग और बहुत सारी कस्टमर रिसर्च करते हैं। एंड वो स्टीव जॉब्स थे। ज्यादातर आदमी जो होते हैं वो जब तक आप कस्टमर को नहीं दिखाओगे और वो सॉल्यूशन पैटर्न नहीं मिलेगा, उसके बिना प्रोडक्ट नहीं बनाते। दूसरा, ये बिल्ड मेजर लर्न में एनालिटिक्स बड़े इंपॉर्टेंट है। तो एक की एनालिटिक होता है जिसपे आपको फोकस करना है, और 3 से 5 आपको अदर एनालिटिक्स पे फोकस करना है। ये 6 से ज्यादा एनालिटिक्स की जरूरत नहीं है। मतलब इन जनरल आप ठीक है ट्रैक रख सकते हो 10-15 पैरामीटर की, बट उस 5-6 से ज्यादा आप ट्रैक इसलिए नहीं रख पाओगे बिकॉज ह्यूमन साइकोलॉजी बहुत ज्यादा चीजों पे अगर फोकस करती है तो किसी चीज पे भी फोकस नहीं कर पाती। तो आपको एक प्राइमरी मेट्रिक रखना है, इसको कहते हैं नॉर्थ स्टार मेट्रिक। जैसे एक एग्जांपल, अगर आपकी कंटेंट की वेबसाइट है तो सबसे इंपॉर्टेंट मेट्रिक क्या है, मिनट्स ऑफ यूजर। मैं कितनी देर उस वेबसाइट पे आगे कंटेंट पढ़ता हूँ। अगर मैं अमेजन हूँ तो मे बी सबसे प्राइमरी मेट्रिक क्या होगा कि कितनी बार कस्टमर ने ऑर्डर किया। पेटीएम के अंदर वो प्राइमरी नॉर्थ स्टार मेट्रिक था ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू। अभी साल भर पहले तक हमारा मेन मेट्रिक था ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू, कि पेटीएम के थ्रू कितनी पेमेंट हो रही है। तो हमारे लिए कमीशन इंपॉर्टेंट नहीं थी, कस्टमर इंपॉर्टेंट नहीं था, पर कितनी पेमेंट हो रही है। तो अगर 10,000 करोड़ की पेमेंट होती है तो हमारी 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा साल की पेमेंट हुई थी, तो वो हमारा मेट्रिक था। तो अब ऑब्वियसली 1 लाख करोड़ की पेमेंट बनानी है तो आपको करोड़ों लोगों से करानी पड़ेगी। बट प्राइमरी मेट्रिक क्या था, सीएमवी ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू। सेकेंडरी मेट्रिक जो था वो क्या था, नंबर ऑफ कस्टमर्स, नंबर ऑफ एक्टिव यूजर्स, ये सब था। इसके बेसिस पे हम फीडबैक लेते थे और लर्न करके करते थे। मैं एक छोटा सा और एग्जांपल बताता हूँ। मैं जब पेटीएम बिल्ड फॉर इंडिया में मैं ज्वाइन किया तो एक दिन विजय मेरे को बोले कि आप जाके, जब पूरे इंडिया में मैं फिजिकली इवेंट्स में जा रहा था, तो बोले कि मेरे को फीडबैक दो लोगों की। तो उन्होंने एक एग्जांपल भी बताया। उसने कहा एक ढाबे वाला मिला उनको जयपुर में, उन्होंने उससे पूछा भैया यूज करते हो पेटीएम। ढाबे वाले ने कहा सर नहीं मैं यूज नहीं करता पेटीएम क्योंकि ये प्रॉब्लम। तो उन्होंने दिल्ली आए, और जब दिल्ली आया तो उन्होंने टीम को बताया ये ढाबे वाले ने फीडबैक दिया है, मेरे को ये फीचर चाहिए पेटीएम में। तो आप ये देखो, आपको हमेशा एजाइल होना पड़ेगा, हमेशा आपको लोगों से फीडबैक लेनी पड़ेगी और वो प्रोडक्ट में इंकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी। और यही वो बिल्ड मेजर्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये चेंज होता रहेगा प्रोडक्ट। आप ये मत सोचो कि आपने ताजमहल की तरह प्रोडक्ट बना लिया तो जिंदगी भर वैसा का वैसा ही रहेगा, वो चेंज होता रहेगा।
अब सेकंड आता है मार्केट। मार्केट में क्या है, मार्केट में बहुत एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि एक तो मार्केट में नई कंपनी का घुसना बहुत मुश्किल होता है। तो मार्केट क्या है, क्या बिजनेस मॉडल है, आप सैस कंपनी बनना चाहते हो, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस सब्सक्रिप्शन देना चाहते हो, आप वन टाइम प्रोडक्ट बेच रहे हो, आप प्रीमियम बेचना चाहते हो कि फ्री प्रोडक्ट बेच रहे हो पर प्रीमियम उसके अंदर इन ऐप परचेजेज हैं। तो ये अलग अलग बिजनेस मॉडल्स होते हैं। अगर आप एग्जिस्टिंग मार्केट में जा रहे हो तो आप क्यों हरा पाओगे दूसरे को, क्योंकि आपका 10x बेटर प्रोडक्ट होगा। तो अगर मैं गूगल को हराना चाहता हूँ, गूगल सर्च से 10x बेटर प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। अगर मैं गूगल सर्च की कॉपी बनाऊंगा जैसे बिंग है फॉर एग्जांपल, तो कोई यूज नहीं कर सकता। तो आपको 10x बेटर प्रोडक्ट चाहिए होगा। अगर मेरे को उबर को हराना है, काफी लोग उबर जैसी सर्विस बनाना चाहते हैं, अगर मुझे उबर को हराना है तो उबर से 10x प्रोडक्ट होना चाहिए। उबर जैसा प्रोडक्ट बनाया 10% अच्छा होगा, उसको यूज नहीं करेंगे। तो प्रोडक्ट मार्केट फिट क्या होता है, जब आपने प्रोडक्ट मार्केट में डाला और बहुत ज्यादा डिमांड हो गई, जैसे डिमोनेटाइजेशन के समय पेटीएम की डिमांड एकदम हो गई। अब ये प्रोडक्ट मार्केट फिट था कि हमें दिख रहा था कि यार मार्केट को यही चाहिए था, हमारे पास यही है। या उबर आया तो उबर को पेटीएम चाहिए था और उबर के वजह से पेटीएम के मिलियंस ऑफ यूजर्स बढ़ गए। तो प्रोडक्ट मार्केट फिट इज दैट। तो प्रोडक्ट मार्केट फिट जिस दिन हो जाता है उस दिन एक्चुअली जिसको कहते हैं गंगा नहा लिया आपने, आपका मेन प्रोडक्ट चलने लग गया, डिमांड बहुत हो गई। मैं अपने बिल्ड फॉर इंडिया की बात बताता हूँ। जब हमने बिल्ड फॉर इंडिया शुरू किया तो मैं स्टार्टअप इकोसिस्टम में ज्यादा किसी को जानता नहीं था दिल्ली के बाहर। तो मेरे को जब कहा गया कि दिल्ली के बाहर भी आप इवेंट्स करो या लोगों से मिलो, तो मुझे किसी को नहीं पता था, किसी के बारे में नहीं पता था। पर 3-4 महीने में क्या हुआ कि इतनी डिमांड होने लगी, मेरे को इन्वाइट आने लगे ऑल इंडिया से। मैं कई स्टेट्स में होके आ गया। एंड व्हाट आई रियलाइज वाज कि मेरे को लोगों को मना करना पड़ रहा था। मतलब पहले मेरे को प्रॉब्लम ये थी कि जब कंपनी वाले कह रहे थे आप जाके इवेंट करो, फर्स्ट करो गुजरात में या आप जाके इवेंट केरला में करो, तो मुझे तो पता ही नहीं था गुजरात केरला में किसके पास जाऊं। 3 महीने में हालात ये हो गए कि मेरे को मना करना पड़ रहा था कि अगर एक हफ्ते में मेरे पास 4 इनवाइट आ गए 4 अलग अलग स्टेट से, तो ऑब्वियसली मैं फिजिकली जा नहीं सकता। तो वो प्रोडक्ट मार्केट फिट ये होता है कि आपको कस्टमर को मना करना पड़ता है। यही सेम पेटीएम के साथ डिमोनेटाइजेशन में हुआ। मेरे कजन का पेट्रोल पंप है हरियाणा में। वो बोले जब पेटीएम वाले आते थे कि हमारा स्टिकर लगा लो, तो हम लोग नखरे करते थे। डिमोनेटाइजेशन के बाद क्या हुआ, लोगों ने फोन करना शुरू कर दिया कि आओ हमारा स्टिकर लगवाओ, हमारे हमारे यहाँ पर स्टिकर लगाओ। तो ये प्रोडक्ट मार्केट फिट होता है। उबर के केस में प्रोडक्ट मार्केट फिट आज कोरोना से पहले आप देखिए, अगर दिल्ली बॉम्बे इनमें उबर की इतनी डिमांड थी कि आप देखिए सर्च प्राइसिंग करनी पड़ती है। तो सर्च प्राइसिंग क्या दिखा रही है कि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। यही प्रोडक्ट मार्केट फिट होता है कि डिमांड ज्यादा हो जाती है, सप्लाई कम होती है, और इसीलिए आपके पास इन्वेस्टर आता है। इन्वेस्टर कहता है यार इतनी डिमांड है, सप्लाई नहीं कर पा रहे, इसको मैं पैसे दूंगा, ये लोग रखेगा और सप्लाई करेगा, तो ऑब्वियसली डिमांड पूरी होगी। कई बार डिमांड ऑनलाइन होती है, जैसे पेटीएम ऑनलाइन प्रोडक्ट है तो आपको वैसे पैसे की जरूरत नहीं है, बट आपको हजारों लोग रखने हैं, क्योंकि अगर पेट्रोल पंप पे स्टिकर लगाने वाला तो चाहिए ना। तो हमारे यहाँ कम से कम 250 से ज्यादा लोग हैं जो सेल्स टीम में है सिर्फ पेट्रोल पंप की। पहले जब मैं पेटीएम में नहीं था तो मुझे समझ नहीं आती थी 10,000 आदमी पेटीएम में करते क्या है। आने के बाद समझ आया है कि बहुत छोटी छोटी चीजें, अगर स्कूल की फीस जमा करानी है तो स्कूल में कोई फिजिकली जाके टाई अप करेगा, उसके बाद ही तो स्कूल फिजिकली फीस करेगा। बिकॉज स्कूल वाले ऑनलाइन आके नहीं फीस जमा कराने की फैसिलिटी देते पेटीएम में, वो ऑफलाइन किसी सेल्स वाले को जाना पड़ता है। तो प्रोडक्ट मार्केट फिट के बाद जब सेल्स वाले जाते हैं तो बड़ी जल्दी चीजें बिकती हैं। प्रोडक्ट मार्केट फिट से पहले जाते हैं तो चीजें, वो बेचारा चक्कर लगाता रहता है पर लोग लेते नहीं है उसका। ये डिफरेंस होता है प्रोडक्ट मार्केट फिट का। फिर प्रोडक्ट मार्केट फिट के समय आपको एक कोर टीम रखनी पड़ती है, बिकॉज प्रोडक्ट बनाने के लिए आप अकेले को फाउंडर या और आप नहीं बना सकते। आपको 2-4 इंजीनियर रखने पड़ेंगे, आपको हो सकता है एक प्रोडक्ट डिजाइनर रखना पड़े। तो आपको 2-4 लोग जरूर रखने पड़ेंगे। तो जनरली 4-5 लोग एवरेज स्टार्टअप में प्रोडक्ट मार्केट फिट में होते हैं। किसी किसी स्टार्टअप में 20 आदमी तक भी रखते हैं। तो 20 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ये मैंने काफी रिसर्च किया है। 15-20 आदमी से ज्यादा कोर टीम में नहीं होने चाहिए। जनरली ये जो कोर टीम में लोग हैं ये वो टाइप के लोग हैं जो बड़ी बड़ी कंपनी छोड़ के हो सकता है आपकी स्टार्टअप ज्वाइन करें, या 5-6 साल एक्सपीरियंस होगा उनको किसी नॉर्मल कंपनी में और फिर आपकी कंपनी को ज्वाइन करेंगे। तो आपको उनको हो सकता है इसॉप्स भी देने पड़े। इसॉप्स की फुल फॉर्म होती है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। आपको हो सकता है उनको एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन देनी पड़े। जैसे पेटीएम के अंदर मेरे ज्वाइन करने से पहले की बात है, 2-2.5 साल पहले काफी लोग ने अपने शेयर्स कई कई करोड़ में बेचे, कई कई लाख में बेचे। ये अखबार में भी कवर हुआ था। तो क्या था कि हमारे जो फाउंडर थे विजय, उन्होंने काफी लोगों को इनिशियली स्टॉक ऑप्शंस दिए थे, जो डिमोनेटाइजेशन के बाद ऑब्वियसली वैल्यूएशन काफी बढ़ गई और 2-2.5 साल पहले उन्होंने मार्केट में उनको बेचने की फैसिलिटी दी। तो कोर टीम को आप अट्रैक्ट सिर्फ पैसे से नहीं कर पाओगे, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया आपके पास पैसे की तो हाल फिलहाल कमी होगी।
और अगर आप किसी बड़ी कंपनी से आदमी को रिक्रूट कर रहे हो, फर्ज करिए एक बड़ी कंपनी में प्रोडक्ट मैनेजर की तनख्वाह जनरली 4-5 लाख रुपए महीना होती है। अब आपको एक अच्छा प्रोडक्ट चाहिए तो आप एक अच्छा प्रोडक्ट मैनेजर चाहोगे। अच्छा प्रोडक्ट मैनेजर अगर आपसे 50 लाख रुपए साल का पैकेज मांगेगा और आप कहोगे यार मेरा तो टोटल बजट ही 10 लाख रुपए है, तो कैसे होगा? वो होगा ऐसे है कि आप उसको कहोगे यार तू ऐसा कर, 4% 5% मेरी कंपनी में इक्विटी ले ले। तो वो डिपेंडिंग अपॉन आपकी क्या नेगोशिएशन पावर है, कितना सीनियर आदमी है। अब ऑब्वियसली अगर वो सिर्फ 2-3 साल एक्सपीरियंस आदमी है, आप उसको ½ % इक्विटी दोगे। बट अगर वो किसी गूगल पेटीएम टाइप की कंपनी को छोड़ के आया तो हो सकता है वो आपसे 10% इक्विटी भी ले ले। तो वो डिपेंड करता है कि वो टीम को कितने शेयर। बट वो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यही वो लोग हैं जो आपका कोर सोल्यूशन है। इस टाइम पे आप स्केल करने की बिल्कुल मत सोचो। इस समय आप स्केल करने की मत सोचिए। इस समय आप सिर्फ ये सोचिए मिनिमम कितने आदमी रख सकते हैं काम कराने के लिए। मतलब अगर आप 5 आदमी में काम करा पा रहे हैं तो 15 मत रखिए, बिकॉज कोर टीम का मतलब ये है कि एक छोटी टीम जो जीत पाती है। अगर ये मैं आपको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से बताऊं तो 5 पांडव की तरह है कि ये गए, वो फाउंडर आपका वो था कि अर्जुन और युधिष्ठिर टाइप के, और ये आपके कोर टीम वो है, इसमें आपके वो 5 पांडव की तरह है। या अगर आप पृथ्वीराज चौहान, अगर आपने कभी सीरियल या उनके बारे में सुना तो उनके भी 4-5 दोस्त थे जिनके साथ वो जाते थे दुनिया जीत के आ रहे थे। तो ये वो कोर टीम है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट लोगों को रखना है। इसमें भी वही फाउंडर की तरह है कि उसका हेड हार्ट और हैंड देखिए कि वो दिल कैसा है, दिमाग कैसा है, उसके अंदर एक्सपीरियंस है या नहीं, ये सब चीजें देखिए। फिर आते हैं एंजल इन्वेस्टर पे। एंजल इन्वेस्टर के पास आप जाएंगे तो देखिए एक चीज बड़ी पक्की है, पहला इन्वेस्टर आपको पैसे नहीं देगा। एक एक लड़का मेरे हमारे इवेंट्स में काफी आता था और मैं काफी पहले से जानता था। एक दिन उसका फोन आया, सर मैं बड़ा डिप्रेस्ड हूँ, क्या मैं आपको फोन कर लूँ? मैंने कहा चलो बात करते हैं। तो उसका ये आया, सर हम पहले इन्वेस्टर के पास गए थे आज, उस इन्वेस्टर ने हमारी इतनी बेइज्जती करी कि मेरा को फाउंडर तो भाग ही गया, कंपनी छोड़ के कह रहा है मैंने कंपनी दी है। तो मैं आपको यही कह रहा हूँ कि एक तो को फाउंडर अगर आपका घबराने वाला होगा तो ऑब्वियसली पहले इन्वेस्टर के पास जाके खुद सोच देगी। दूसरा यह है कि जो एंजल इन्वेस्टर है वो आपके मतलब वो कमियां इसलिए ढूंढते हैं क्योंकि उनको एक्सपीरियंस होता है। उनको पता है यार तुमने ये चीज बनाई है, ये इस कंपनी की नहीं चली थी, तुम्हारी कैसे चल जाएगी। फर्ज करिए आपने कहा मैं मोबाइल ऐप बनाऊंगा, उसके थ्रू बच्चे पढ़ाई कर लेंगे, और वो एंजल इन्वेस्टर कहेगा कि बैजूस ने तो ये बना रखा है, तुम एजुकेशन में ये चीज बनाओगे तो ये तो चलेगी नहीं। बैजू को तो सेल्समैन रखने पड़ते हैं, तुम कह रहे हो अपने आप ही ऑनलाइन चलेगा। मतलब वो इस टाइप के तीखे क्वेश्चन पूछेगा। अगर आपके पास उनके आंसर नहीं होंगे तो आपको इन्वेस्टर पैसे नहीं देगा। आप ये समझिए जो एंजल इन्वेस्टर है ये 10 गुना अपने पैसे करना चाहता है, तो ये बड़ा फूक फूक के कदम रखते हैं। कई लोग पैशन देख के भी पैसे दे देते हैं कि यार ये फाउंडर बड़ा पैशनेट है। तो अगर आपको खुद ही अपने प्रोडक्ट पे कन्विक्शन नहीं है तो कोई पैसे नहीं देगा आपको। तो एंजल इन्वेस्टर फिर आपसे एक चीज साइन कराता है, उसको कहता है टर्म शीट। अब ये टर्म शीट क्या होता है कि एग्रीमेंट साइन होता है बिफोर द फाइनल एग्रीमेंट। तो एंजल इन्वेस्टर आपको कहेगा मैं आपको 50 लाख रुपए दे रहा हूँ 5 करोड़ की वैल्यूएशन पे, 10% शेयर दूंगा, और ये टर्म शीट आपसे साइन कराएगा। टर्म शीट साइन होने के बाद वो ड्यू डिलीजेंस करेगा। ड्यू डिलीजेंस का मतलब होता है वो अपने सीए को आपके पास भेजेगा, अपने लॉयर को हो सकता है भेजे, वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, कंपनी फॉर्मेशन वगैरह के चेक करें। अब एक और पॉइंट आता है कि कंपनी किस समय बनाए। काफी लोगों को ये क्वेश्चन होता है सर कंपनी पहले दिन ही बना ले। मैं ये कहूंगा कंपनी सर्च स्टेज में मत बनाइएगा, बिकॉज सर्च स्टेज में क्या होता है कुछ सोल्यूशन मिला ही नहीं, प्रॉब्लम ही ढूंढते रह गए। या जैसे मैं अपने केस में बताऊं, मेरे को एक बार 4-5 साल लग गए थे प्रॉब्लम और सोल्यूशन ढूंढने में। तो उस केस में अगर आपने कंपनी बना रखी होगी, आपको ऑडिटर को, सीए को पैसे देने पड़ेंगे हर साल। कंपनी इंडिया में बंद करने में भी पैसे देने पड़ते हैं और बड़ी मुश्किल से बंद होती है। तो आई वुड एडवाइज आप कंपनी से तब बनाना जब आप एंजल इन्वेस्टर के पास जाना चाह रहे हो, आपके आपको दिख रहा है 100-50 लोग आपके प्रोडक्ट से खुश हैं, और आपको दिख रहा है कि यही वो चीज है जो मैं 10-20 साल तक बनाना चाहता हूँ। अगर आपको ये लगेगा तो ही आप एंजल इन्वेस्टर के पास जाइए। उस समय एंजल इन्वेस्टर के पास जाने से पहले आप कंपनी बना लीजिए। कई बार एंजल इन्वेस्टर के पास आप बिना कंपनी बनाए भी जा सकते हो। आप कह सकते हो सर पार्टनरशिप फर्म है, आप जैसे ही पैसे दोगे मैं कंपनी बना लूंगा, तो वो भी चल जाता है। फिर आते हैं स्केल फेज पे। स्केल फेज वो है जो आज पेटीएम जिस फेज में है, ग्रोथ प्रॉफिट फिट। आज हम प्रॉफिटेबल अभी नहीं है, बट हमारे यहाँ ग्रोथ पे फोकस था डिमोनेटाइजेशन के बाद। तो हमारे फाउंडर हैं अभी, उन्होंने पीछे प्रेस को बताया कि 3-3-3 मॉडल। तो वो बोले 3 साल ग्रोथ पे फोकस करो, 3 साल रेवेन्यू पे फोकस करो, 3 साल प्रॉफिट पे फोकस करो। तो ग्रोथ वाला 3 साल वाला फेज चला गया है, ऑब्वियसली डिमोनेटाइजेशन को 3 साल से ज्यादा हो गए हैं।
अब हमारा जो फोकस है इस समय रेवेन्यू फेज पे है, हम रेवेन्यू पे फोकस करते हैं। कई बार हम कस्टमर्स को छोड़ देते हैं, बट क्योंकि हम फ्री में सर्विसेज, आपने देखा होगा कैशबैक बड़े रिड्यूस कर दिए हैं, तो अब हम रेवेन्यू चाह रहे हैं, प्रॉफिटेबल ग्रोथ चाह रहे हैं। जैसे ही हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आएगा, ब्रेक इवन पॉइंट वो होता है जहां पर आपको एक्सपेंसेस और रेवेन्यू सेम हो जाता है, फिर हम धीरे धीरे प्रॉफिट की तरफ फोकस करेंगे। प्रॉफिट पे जब हम फोकस करेंगे तो ऑब्वियसली प्रॉफिट धीरे धीरे आएगा, उसमें टाइम लगेगा। और जैसे ही प्रॉफिट आएगा ऑब्वियसली आईपीओ तभी आ पाएगा, क्योंकि इंडिया के अंदर तो रूल ही है कि जब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं होते आप आईपीओ नहीं ला सकते। अमेरिका में भी अगर आप इवन शायद रूल नहीं है कि प्रॉफिटेबल होना की जरूरत है नैस्डैक पे लिस्ट होने के लिए, बट इवन देन ऑब्वियसली कोई भी आपको लिस्ट नहीं करने देगा जब तक आप कुछ कमा नहीं रहे हो, बिकॉज रेयर होता है, उबर जैसी कंपनियां रेयर होती हैं जो लॉस मेकिंग होती हैं पर अमेरिका में स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो गई है, कम होती हैं। बट इसमें भी आप देखिए आज जूम की वैल्यूएशन उबर से शायद ज्यादा हो गई है। रीजन, जैसे जूम को आप देखो तो आज सब जूम यूज कर रहे हैं, पिछले 2 महीने में जूम की वैल्यूएशन बहुत बढ़ गई है। तो प्रॉफिटेबल जितने आप हो गए उतनी वैल्यूएशन में हेल्प होती है, बट कई बार प्रॉफिट, छोटा मोटा प्रॉफिट से बेटर है कि ग्रोथ इज मोर इम्पोर्टेंट। तो इट डिपेंड्स। कॉर्पोरेशन पे आते हैं। कॉर्पोरेशन पे देखिए, जब आप 100 लोग रखेंगे तो फिर आपको एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, एचआर को रखना पड़ता है, एडमिन को रखना पड़ता है। तो क्या क्या डिपार्टमेंट्स होने चाहिए, ये हो सकता है आपको इस स्टेज पे नहीं चाहिए। मैं थोड़ी सी ब्रॉड लेवल पे आइडिया इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज एज अ फाउंडर आपके दिमाग में क्या होता है, आप एक सपना देखते हो कि कल को मेरी कंपनी बड़ी होगी, तो कल को मेरी कंपनी बड़ी होगी तो उसमें क्या क्या होगा। तो वैसा होगा कि जब भी कोई ह्यूमन बींग होता है तो उसके अंदर हार्ट होता है, किडनी होती है, लंग्स होते हैं। इसी तरीके से एक कंपनी के क्या क्या कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं। तो एक कंस्टिट्यूएंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एचआर है, बिकॉज सबसे पहले तो आदमी एचआर ही रखेगा। तो एचआर डिपार्टमेंट के 2 काम होते हैं, एक तो पेरोल वगैरह और डे टू डे ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेज करना होता है, एक रिक्रूटमेंट होता है। एक एडमिन डिपार्टमेंट होगा जो डे टू डे ऑफिस संभालेगा, बिकॉज इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स इतने ज्यादा हैं कि आप एज अ को फाउंडर जाके ये भी नहीं, मतलब एक एग्जांपल थोड़ा सा देता हूँ, बहुत सारे ऑफिसेज हैं जिनके आगे बारिशों में पानी भर जाता है, तो अब आप एज अ फाउंडर आप बाहर की नाली की सफाई तो नहीं कराओगे, ये काम एडमिन डिपार्टमेंट कराएगा। तो दूसरा, फिर आपको जो फोकस करना होता है, आपको लीगल डिपार्टमेंट चाहिए, एक परचेज डिपार्टमेंट चाहिए, बिकॉज आप सारी चीजें खुद परचेज नहीं कर पाओगे, एक लीगल चाहिए, बिकॉज बहुत सारी चीजें लीगल कोनोटेशन होते हैं, तो 1-2 लॉयर हो सकता है आपको रखने पड़े अपने कंपनी में, या 100 के हिसाब से बता रहा हूँ। आज पेटीएम जैसी कंपनी होगी तो हमारे पास 10 से ज्यादा लॉयर्स हैं। हमारे पास एक फुल फ्लेजेड एडमिन डिपार्टमेंट है जिसमें एक एक हेड होता है हर ऑफिस का। अब हमारे क्योंकि ऑफिस ही बहुत सारे हैं तो एडमिन डिपार्टमेंट भी काफी बड़ा है। उसके अलावा एक आपको ऑडिट का डिपार्टमेंट चाहिए। अब वो डिपेंडिंग अपॉन दी कंपनी, अगर आपकी 100 आदमी की कंपनी है तो एक सीएफओ चाहिए आपको, क्योंकि वो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर आपको पूरा वो फंडिंग में भी हेल्प करता है, उसके अलावा वो आपकी पूरी कैश प्लानिंग भी करता है। जैसे फर्स्ट या कोरोना है, कोई भी कस्टमर अगर पैसे नहीं देगा आधी से ज्यादा तक, तो ये सीएफओ का काम है कि उसको प्लानिंग करनी है कि आप पैसे कहाँ से लेके आ सकता हूँ। तो चाहे वो लिमिट बनवाएगा बैंक से जाके, तो ये सारे आपको डिपार्टमेंट। एक आपको हायरार्की बनानी पड़ती है। हायरार्की में देखिए, पेटीएम में जैसे 10 लेवल्स हैं, विजय लेवल 10 पे है, मैं लेवल, हर लेवल के भी पार्ट्स हैं। तो जैसे मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ तो मैं लेवल 7 पे हूँ, तो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट होता है लेवल 8 पे होता है, लेवल 9 पे प्रेसिडेंट होता है। इसी तरीके से अगर आप कंपनी ज्वाइन करो पहले दिन तो एसोसिएट होते हो, आप अगर तो लेवल 1 पे होते हो, टीम लीडर लेवल 2 पे होता है, मैनेजर शायद लेवल 4 पे होता है। तो इस तरीके से अलग अलग लेवल हैं। तो इसमें आप ये मान के चलिए, एक तो जूनियर लेवल के एम्प्लॉइज होंगे, उनका एक लेवल होगा, फिर एक मैनेजरियल लेवल होगा। अगर आप एक 100 आदमी कंपनी में देखें तो उसमें कई तरीके के मैनेजर ना भी हो, तो मैनेजर का एक लेवल बनाना पड़ेगा जो नॉर्मल एम्प्लॉय से ऊपर होगा। उसके बाद फिर आपको वाइस प्रेसिडेंट और इस टाइप के सीनियर लोगों का एक लेवल बनाना पड़ेगा जो काफी सीनियर लोग हैं, और ऑब्वियसली एक फाउंडर या सीईओ होगा। मिनिमम 4 लेवल तो चाहिए। जैसे मैंने बताया पेटीएम में 10-15 हजार लोग हैं, तो 10 लेवल हैं। गूगल के अंदर भी मैंने गूगल और अमेजन में जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनसे भी पता किया, तो 10-12 लेवल होते हैं गूगल अमेजन वगैरह में। वेंचर कैपिटलिस्ट एंजल इन्वेस्टर की तरह होता है, बट थोड़ा डिफरेंस ये होता है कि एंजल इन्वेस्टर अपने पैसे लगाता है, वेंचर कैपिटलिस्ट ने एक फर्म खोल रखी होती है जिसमें फंड बना रखा होता है, वो फंडिंग देता है काफी सारे पैसे वाले लोगों से। तो वो लाखों करोड़ों रुपए उनसे फंडिंग लेता है। और जनरली एक वेंचर कैपिटलिस्ट का करोड़ों रुपए का फंड होता है। ये 8-10 साल का उनका एक वेंचर फंड होता है जिसमें 8
5-10 साल के बाद उसको 10 गुना पैसे करके इन्वेस्टर्स को देने का टारगेट होता है। तो इसलिए कम से कम वेंचर कैपिटलिस्ट के पास आप जाओगे तो वो 10 गुना रिटर्न तो मांगेगा। तो अगर आप उससे 2 करोड़ रुपए मांगने जाओगे वेंचर कैपिटलिस्ट के पास, तो वो कहेगा मेरे को 20 करोड़ रुपए करने का प्लान दिखाओ कि मेरे ये पैसे 20 करोड़ के हो जाएंगे, और वो 20-25% से ज्यादा शेयर खरीदता नहीं है, तो आपको 100 करोड़ रुपए की कंपनी का कम से कम होने का तरीका दिखाना पड़ेगा, नहीं तो कोई वेंचर कैपिटलिस्ट आपकी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेगा। सबसे अब इसमें अलग अलग राउंड होते हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट आप एक बार नहीं इन्वेस्ट करते, आप उस पर कई कई बार पैसे मांगते हो। तो वो जो आप कई कई बार पैसे मांगते हो, तो वो पहले राउंड क्या कहते हैं, सीरीज ए। सीरीज ए का मतलब है आपने पहली बार वेंचर कैपिटलिस्ट से पैसे उगाए हैं, पहली बार इकट्ठे करे। अगर आपने दूसरी बार उससे पैसे लिए जाके, या हो सकता है पहले वाले इन्वेस्टर से नहीं लिए, दूसरे वाले नए इन्वेस्टर से लिए, उसको कहते हैं सीरीज बी। ये एबीसीडी इस तरीके से चलता रहता है। तो ए राउंड, बी राउंड, सी राउंड। तो अगर आप सीरीज ए का मतलब है कि पहला राउंड लिया आपने, सीरीज बी का मतलब है दूसरा राउंड लिया, सीरीज सी का मतलब है तीसरा राउंड लिया। एक डाउन राउंड होता है कि मैंने हो सकता है पिछली बार पैसे ले लिए थे, अब कोरोना आ गया, कोई भी फंडिंग नहीं कर रहा, तो मैंने कहा यार सबसे प्लान है तो 50 करोड़ की वैल्यू कॉफी देगा, तो इसको डाउन राउंड। Sir, we are unable to hear you. ओके, तो अब आ रही है आवाज? जी sir. Sir, if you could repeat from the series A part. हाँ, तो सीरीज ए के बाद सीरीज बी होती है, सीरीज बी के बाद सीरीज सी होती है। हेलो? Yes sir. It's हाँ, yes sir, audible. सीरीज ए बी सी इस तरीके से ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलता रहता है। मैंने सीरीज डी और ई भी सुनी हुई है। तो ज्यादातर सीरीज में आप वैल्यूएशन बढ़ाते रहते हो, बट कभी कभी वैल्यूएशन घट भी जाती है। जैसे आजकल वैल्यूएशन घट रही है, तो हो सकता है किसी कंपनी ने 100 करोड़ की वैल्यूएशन पे फंडिंग ली हो सीरीज ए में, और आजकल उसको पैसे की जरूरत पड़ गई, अब वो फंडिंग लेगी, तो सीरीज बी उसकी डाउन राउंड होगी। डाउन राउंड का मतलब है कि अब वैल्यूएशन घट गई है पिछले राउंड से। तो पिछले राउंड में 100 करोड़ की वैल्यूएशन थी, इस राउंड में 50 करोड़ की रह गई वैल्यूएशन। फर्ज करिए जैसे कोरोना आ गया तो वैल्यूएशन कम होगी ना। तो ये भी टर्म शीट साइन कराते हैं, ये भी ड्यू डिलीजेंस करते हैं। उसके बाद ये शेयर होल्डर एग्रीमेंट साइन कराते हैं, ये अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपने रिप्रेजेंटेटिव को भी डालते हैं आपकी कंपनी में। तो ये काफी चीजें होती हैं। तो ये 9 स्टेप्स हैं जो मैंने आज आपसे शेयर करे हैं। अब इनके बारे में आप मेरे से क्वेश्चंस पूछ लीजिए, बिकॉज ये ही 9 स्टेप हैं। अगर आज मैं पेटीएम के केस में कहूँ तो अभी लास्ट ईयर फिर से हमने फंडिंग उठाई है, तो क्वेश्चन आई थिंक बेटर ये रहेगा कि आप लोग अपने क्वेश्चन काट लीजिए। मॉडरेटर जो है वो Yes sir. So we can take up the questions in the chat box. हाँ हाँ। तो एक क्वेश्चन आया है, सर हाउ मेनी टेन्योर रिक्वायर्ड फॉर 20x ROI वर्सेस इन्वेस्टर। ये टेन्योर का मतलब बेसिकली अगर टाइम आप कह रहे हैं, तो जैसे मैंने बताया वेंचर कैपिटल जो फंड होता है ना, वो 8 से 10 साल की जनरल उसकी एज होती है। तो अगर समझ लीजिए कोई फंड पहले दिन तो आपके पास आप पहुंचोगे नहीं, जनरली जब तक आप उस फंड के पास पहुंचोगे 1-2 साल हो भी चुके होंगे, तो वो 5-6 साल में आपसे 10-20x रिटर्न मांगेंगे। अब वो 10x ही क्यों मांगते हैं? क्योंकि वो मानते हैं कि 10 में से 8 कंपनी पैसे डुबो देंगी, 1-2 कंपनी पैसे उतने ही वापस देंगी, और एक कंपनी होगी जो 10-20 गुना पैसे करेगी। तब जाके वो सिर्फ उतने पैसे दे पाएंगे जितने उन्होंने इन्वेस्टर से लिए हैं। ऑब्वियसली अगर कोई होशियार वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, उनकी 2-3 कंपनी सक्सेसफुल हो जाती है, तो 10x तो वो मिनिमम मांगेंगे, कई 100x भी मांगती है। मेरे एक दोस्त हैं, वो काफी बड़ा फंड चलाते हैं, वो 100x मांगते हैं। वो कहते हैं यार 10x से क्या होगा, 10x से तो वही के वही पैसे वापस दे रहे हैं इन्वेस्टर को। तो 5-6 साल आप मान के चलिए, बट इट डिपेंड्स ऑन आप कितने पुराने इन्वेस्टर के पास जा रहे हो, उसका फंड कितना पुराना है। अगर मेरा फंड 4 साल पुराना है तो ऑब्वियसली मेरे पास कम टाइम है, और मेरा फंड 1 साल पुराना है तो मेरे पास ज्यादा टाइम है। मेरा फंड 8 साल का है तो ऑब्वियसली कम टाइम है, मेरा फंड 12 साल का है तो ज्यादा टाइम है। तो आपको वो देखना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज द राइट टाइम टू रेज मनी। देखिए राइट टाइम जो मनी रेज करने का वो ये है जब आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वेंचर कैपिटलिस्ट की एक और टर्म है वल्चर कैपिटलिस्ट। वो क्या होता है, काफी लोग आपको मतलब उनको पता है कि आज कोरोना का टाइम है, पैसे नहीं मिल रहे हैं मार्केट से, कस्टमर नहीं मिल रहा है, तो वो आपसे ज्यादा इक्विटी मांगेंगे, कम वैल्यूएशन देंगे। तो बेटर ये है कि जब टाइम अच्छा हो, जब मार्केट बूम में हो। एक एग्जांपल देता हूँ, हमने पेटीएम में लास्ट ईयर पैसे रेज करे, समझ लीजिए आज पैसे रेज करना होता तो कितना मुश्किल काम होता। तो जनरली आप पैसे जब रेज कर लो जब आपको लगता है कि 1 साल बाद पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो बेस्ट होता है कि अगर 1 साल बाद पैसे की जरूरत हो तो आज पैसे रेज करो।
अगर आपको जब पैसे की जरूरत हो तभी रेस करोगे तो अब पता नहीं 1 साल बाद क्या होगा। और दूसरा ये भी प्रॉब्लम है कि उस समय इन्वेस्टर सेंटीमेंट क्या हो, आपका प्रोडक्ट कैसा चल रहा हो। बेटर है कि आप 1 साल पहले रेस कर लीजिए। हो सकता है इमीडिएट पैसे ना भी मिले, उससे ये फायदा ये रहेगा 1 साल में नहीं मिलेंगे, 6 महीने में भी पैसे मिले तो आपके पास 6 महीने पहले पैसे आ गए और नेगोशिएशन पावर रहती है आपके पास। अगर आपको पता है अगले महीने पैसे सैलरी देने के पैसे नहीं है तो आपको इन्वेस्टर वो वल्चर कैपिटलिस्ट वाली हरकतें करता है, वो चीज नहीं करेगा अगर आप 1 साल पहले इन्वेस्टमेंट लेने जाओगे तो अब मैं दोबारा आता हूँ कि 9 स्टेप्स पीपल आर सेइंग कि सर 9 स्टेप्स रिकैप कर दिए। 9 स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप इज प्रॉब्लम सॉल्यूशन फिट। अगर इसको आप सिर्फ प्रोडक्ट मैनेजमेंट के एंगल से देखते हो तो आप इसको लेफ्ट टू राइट जाओगे, प्रॉब्लम सॉल्यूशन फिट, उसके बाद प्रोडक्ट मार्केट फिट और ग्रोथ प्रॉफिट फिट। प्रोडक्ट मैनेजर इन 3 स्टेप्स को देखता है। एचआर वाला आदमी या अगर कोई ह्यूमन रिसोर्सेज के एंगल से देखे तो पहले फाउंडर चाहिए आपको, फिर कोर टीम चाहिए, फिर कॉर्पोरेशन चाहिए। परचेसिंग पावर के एंगल से देखें तो पहले आप बूटस्ट्रैपिंग करोगे, फिर एंजल इन्वेस्टर ढूंढोगे और फिर आप इसको करोगे, वेंचर कैपिटलिस्ट आपको चाहिए होगा। तो ये आपको तीनों के तीनों फोकस करने पड़ेंगे। बट जनरली मैं इसको दूसरे स्टाइल से लेता हूँ। सर्च फेज में आपको 3 पैरेलल स्टेप्स करने हैं, प्रॉब्लम सॉल्यूशन फिट, फाउंडर्स, बूटस्ट्रैपिंग। फिर आप उसके बाद बिल्ड स्टेज में जाओगे, प्रोडक्ट मार्केट फिट, कोर टीम और एंजल इन्वेस्टर के 3 स्टेप्स। और फिर स्केलिंग फेज में जहां आपको ग्रोथ प्रॉफिट फिट, कॉर्पोरेशन और वेंचर कैपिटलिस्ट। अब ये 3 अलग अलग डिस्टिंक्ट फेज हैं। बिकॉज जब मैं वेंचर कैपिटलिस्ट के बाद जाता हूँ तभी कॉर्पोरेशन बनाता हूँ, तभी ग्रोथ करता हूँ। मैं जब आइडिएशन में होता हूँ ना तो मैं ग्रोथ कर सकता, ना मैं 100 लोग रख सकता, ना मैं 100 करोड़ 10-20 करोड़ की फंडिंग ले सकता। तो ये चीज, ये 3 क्लियर वाटर टाइट स्टेप्स हैं। इस प्रॉब्लम सॉल्यूशन फिट और प्रोडक्ट मार्केट फिट में जो चेंज आता है वो थोड़ा सा हेजी सा चेंज होता है। बिकॉज आप मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बना के उसको जैसे अपडेट करना शुरू करोगे, थोड़ा सा आपका सॉल्यूशन की क्लैरिटी होगी तो उसको आप फिर कह सकते हो कि टेक्निकली मैं प्रोडक्ट मार्केट फिट में चला गया। तो कोई हार्ड बॉर्डर लाइन नहीं होती। बट हाँ, अगर आपने एंजल इन्वेस्टर को ले लिया है तो आप बिल्ड फेज में ही आ जाओगे, क्योंकि बहुत ही रेयरली होता है बूटस्ट्रैपिंग फेज में आपको एंजल इन्वेस्टर पैसे देगा। फिर क्या एक और क्वेश्चन है, कैन वी जस्ट हायर पीपल इंस्टेड ऑफ कीपिंग को फाउंडर? देखिए, मेरी तो अपनी थ्योरी यही है कि आप अगर आपको फंडिंग नहीं लेनी है तो, और अगर आप को फाउंडर नहीं चाहते तो आई वुड एडवाइज ठीक है को फाउंडर मत रखो। इन्वेस्टर्स जितने भी मेरे को मिले हैं सबकी जनरली यही धारणा है कि कम से कम 2 इन्वेस्टर, 2 को फाउंडर होने चाहिए। उसका रीजन है, वो कहते हैं एक का एक्सीडेंट हो गया तो दूसरा तो रहे ना, नहीं तो मेरे तो सारे पैसे डूब गए। तो एक तो उनको को फाउंडर इसलिए इच्छा होती है। दूसरा वो ये कहते हैं कि एक टेक्निकल कंपनी बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, एक आदमी मार्केटिंग के लिए चाहिए, एक टेक्नोलॉजी के लिए चाहिए, एक पीपल मैनेजमेंट के लिए चाहिए। तो जनरली स्पीकिंग मतलब ये जो एक आदमी प्रोडक्ट देख रहा होगा, एक पीपल देख रहा होगा, एक परचेसिंग पावर देख रहा होगा, एक हो सकता है सेल्स वगैरह देख रहा हो, तो 2-3 को फाउंडर इसलिए चाहिए। बट अब आप विजय को देखिए, विजय प्रैक्टिकली मतलब आज वो खुद ही कंपनी चलाते हैं, वो सोलो फाउंडर हैं। मैंने काफी लोग देखे हैं जो सोलो फाउंडर होते हैं, बट इट डिपेंड। ज्यादातर जो सक्सेसफुल कंपनियां हैं उनमें 2 को फाउंडर होते हैं जनरली। अगर आप इन्फोसिस वगैरह को देखोगे तो उनमें तो 7 को फाउंडर थे, तो 5-6 थोड़ा हायर साइड पे हो जाते हैं, 2-3 इज जनरल व्हाट इज देयर। एंड एक अगर आपके अंदर इतना बूता है, जैसे मैंने आपको बताया विजय के अंदर 8 इंटेलिजेंस की थ्योरी थी, उसमें बड़ा जोश है। अब अगर आपके अंदर उतना जोश है के साथ भी को फाउंडिंग करी, तो इट डिपेंड्स आप क्या चाहते हैं। एक और क्वेश्चन है, एलएलपी वर्सेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। देखिए, जो इन्वेस्टर है, एंजल इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटलिस्ट, जनरली दे प्रेफर प्राइवेट लिमिटेड। खासकर वेंचर कैपिटलिस्ट तो एलएलपी नहीं प्रेफर करेगा, वो तो प्राइवेट लिमिटेड ही चाहेगा। एंजल इन्वेस्टर के केस में फिर भी क्योंकि इंडिविजुअल है, आप उससे एलएलपी की बात कर सकते हो, कई लोग मान भी सकते हैं। आई वुड एडवाइज कि अगर आपको सर्च फेज में बनानी है तो एलएलपी या पार्टनरशिप फर्म बनाओ, और अगर बिल्ड फेज में बनानी है तो प्राइवेट लिमिटेड बनाओ। आइडियली सर्च फेज में तो इवन प्रोप्राइटरशिप भी चल सकती है, बिकॉज अगर आप को फाउंडर पे ट्रस्ट कर सकते हो, आपने उसको 2 लाख रुपए दे दिए और वो अपने बैंक अकाउंट से खर्चता रहा, वो भी हो सकता है। इट्स नॉट कि आपको सब कुछ अलग अलग ही बना के ही करना है। तो हाउ टू ग्रो एज इंट्राप्रेन्योर इन कंपनी? देखिए, मैं अपने आप को आज इंट्राप्रेन्योर ही मानता हूँ। इंट्राप्रेन्योर की बड़ी जरूरत है। मैं जैसे आपको बता ही रहा हूँ कि अगर आप काम करना चाहते हो, आपको काम करने में मजा आता है, तो आप इंट्राप्रेन्योर हो। आप एंटरप्रेन्योर की तरह सोचते हो, बट आप एक कंपनी के अंडर हो। देखिए, उसका फायदा होता है। मैंने क्यों पेटीएम ज्वाइन की, बिकॉज मेरी मतलब
इनिशियली मैं रिलेटिवली पहली बार जॉब थी तो थोड़ा अजीब सा लग रहा था जॉब करते हुए. मेरी मदर भी थोड़ी स्केप्टिकल थी बिकॉज मेरे फादर सीए थे और एक बिजनेस फैमिली से थे, तो पहली बार फैमिली में भी मतलब मेरे फादर की साइड में पहली बार कोई जॉब कर रहा था. मेरे कजन्स वगैरह भी जॉब नहीं करते. तो क्या था कि रीजन ये था कि मेरे काफी सारे सपने थे कि मैं एंटरप्रेन्योरशिप में और इकोसिस्टम में काफी चीजें करना चाहता था. मैं एजुकेशन में काफी चेंजेस लाना चाहता था. वो अकेले नहीं ला पा रहा था. अब ऑब्वियसली एक प्लेटफॉर्म चाहिए था. विजय मेरे को राइट माइंडेड आदमी लगे जो चाहते थे कि मैं दुनिया चेंज करूं. तो मुझे लगा कि वो बिल्कुल ऐसा लगा कि विजय मेरे सारथी बन रहे हैं, तीर मेरे को चलाना है. तो मैंने एक बार उनको कहा भी था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अर्जुन हूँ, आप कृष्ण हो, और मैं आज युद्ध लड़ रहा हूँ देश का स्टार्टअप इकोसिस्टम चेंज करने के लिए या देश का एजुकेशन इकोसिस्टम चेंज करने के लिए. तो अगर आप इंटरप्रेन्योर हो और आपको कोई ऐसा आदमी मिल जाता है जो एंटरप्रेन्योर है और जो कृष्ण की तरह आपका साथ देता है, वो देखिए वो रिसोर्सेज हो, कृष्ण से भी ज्यादा यहाँ तो वो रिसोर्सेज भी देंगे. बट बेसिकली क्या होता है कि आपको एक आदमी चाहिए जो आपको रिसोर्सेज दे, जो आपके ऊपर ट्रस्ट करे, जो आपको एक प्लेटफॉर्म दे जो आप करना चाहते हो. एंड ऑब्वियसली उसके एंगल से आप देखोगे तो उसको एक मोटिवेटेड आदमी मिल जाता है. मोटिवेटेड आदमी मिलना भी तो आजकल बहुत मुश्किल है. या जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मेरे को वेबिनार करना होता है, फिजिकल इवेंट्स करना होता है, तो मैंने बहुत सारी छुट्टियों में सैटरडे संडे, मतलब अभी कोरोना इज द फर्स्ट टाइम मैं पिछले साल मार्च के अंदर में मैं अपने बच्चों को लेटे हुए देखता था बिकॉज मैं सुबह 7-8 बजे फ्लाइट में निकल जाता था. रात को जनरली 10-11 तक आता था, बच्चे सो रहे होते थे. तो एक बार बीच में बड़ी फ्रस्ट्रेटिंग टाइम आया था मार्च अप्रैल में लास्ट ईयर, जब मेरे को लगता था यार बच्चे मिलते ही नहीं मेरे को. तो और आज आप ये देखिए, मतलब ये पहली बार होगा मैं 1 महीना बच्चों के साथ रहा हूँ पूरे दिन 24 घंटे, बिकॉज बच्चे भी घर पे ही हैं. तो मैं वही आपको बता रहा हूँ, इंट्राप्रेन्योर आप तभी बन सकते हो जब एंटरप्रेन्योर आपका साथ देता है और आप भी साथ उसका देते हो. बट So, हाँ हाँ जी. sir, I had one question that for all of us as as emerging startups or maybe early revenue stage startups, what is the right time to raise money? ये आपने बताया, but is there any right kind of investor we should राइट look काइंड for? ऑफ इन्वेस्टर वही है, जैसे मैंने फाउंडर का बताया, हेड हार्ट और हैंड. आप देखिए कि इन्वेस्टर के दिल में क्या है. क्या वो इन्वेस्टर बड़ा काम करना चाहता है, क्या इन्वेस्टर क्विक मनी चाहता है, क्या वो इन्वेस्टर पैसे किस सोर्स से ला रहा है. अगर विजय काफी चीजों में एंजल इन्वेस्ट करते हैं फर्ज करिए, तो विजय जैसा इन्वेस्टर लेके आना ऑब्वियसली ज्यादा बेटर है. अगर आप स्टार्टअप खोल रहे हो देन से आपने दावूद इब्राहिम से पैसे ले लिए, तो अब आप ये देखिए काफी लोग रियल एस्टेट टाइकून्स वगैरह से पैसे ले लेते हैं. अब वो रियल एस्टेट टाइकून की अपनी थ्योरी होगी. अब जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ, मेरा एक कजन है, ही इज रिलेटिवली वेरी हाई नेटवर्क इंडिविजुअल. ही ऑलवेज सेज कि यार तू अपनी कंपनी खोल ले, या वो पहले भी कह रहा था, अब मुझे और कहता है यार जॉब छोड़ के मेरे साथ आजा, अपनी कंपनी खोल ले, आई वांट टू इन्वेस्ट इन योर कंपनी. मैं को फाउंडर नहीं बनना चाहता, इन्वेस्ट करना चाहता हूँ. अब मैं ऐसे आदमी से क्यों नहीं पैसे लूंगा, बिकॉज आई नो कि आफ्टर 6 मंथ्स ही वुड से यार मतलब ब्याज भाड़ा कितना आ रहा है, मेरे को कितनी रिटर्न आ रही है. बिकॉज स्टार्टअप में क्या होता है 2 साल 3 साल तक पैसा हो सकता है ना है. एंड ही डजंट नो दी इन्वेस्टर इकोसिस्टम. वो एज एन इन्वेस्टर कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर रहा. ना तो वो किसी को इकोसिस्टम में जानता, ना वो किसी इंक्यूबेटर को जानता, ना वो किसी को इंडस्ट्री में जानता. तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है. मतलब वो सिर्फ पैसे देगा. या हो सकता है थोड़ा बहुत जैसे उसकी रियल एस्टेट की बैकग्राउंड है, रियल एस्टेट से पैसे कमाए हैं, तो रियल एस्टेट में हो सकता है हेल्प करते हैं. बट अगर मुझे एजुकेशन को हाथ Sir, भी दे you're not सके audible. और हैंड, आप ऐसे इन्वेस्टर से पैसे लो जो हेड भी दे सके, हार्ट भी दे सके, और आपको हैंड में आके एक्सपीरियंस भी दे सके. Amazing, sir. That's a valuable insight. And sir, you mentioned that any investor would fear to invest in a solo founder. But what has worked in Vijay sir's case? Can you please explain us about it? देखिए एक Or तो if विजय के केस में क्या है कि उनके इंटरपर्सनल स्किल्स बड़े हाई हैं. जो मैंने देखा कि विजय को ना इंटरपर्सनल स्किल्स में 10 में से मैं तो 12 कई बार रेट करता हूँ. तो वो ना उनका एक स्टाइल है, मतलब वे ऑफ वर्किंग, की वो इंटरपर्सनली बहुत डाउन टू अर्थ हैं. लोगों से जब वो पहली बार मिलते हैं तो लोग इम्प्रेस हो जाते हैं उनसे. दूसरा क्या है कि विजय को जैसे मैंने बताया 8 इंटेलिजेंस हैं. तो और वो काफी ना जोश वाले आदमी हैं. मतलब उनकी ना एनर्जी रिलेटिवली हाई रहती है. उनको 15 घंटे काम करने के बाद ना जोश ठंडा नहीं होता उनका. तो ये एक उनके अंदर खास चीज है. तो अगर आप ऐसे को फाउंडर भी तो ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना. मतलब अगर आप को फाउंडर ढूंढते हो जो 15 घंटे थके नहीं काम करने में, तभी आपके साथ वो
इक्वल पार्टनर रह सकते हैं। तो उनके केस में थोड़ा वो एनर्जी ज़्यादा है। देखिए अगर आप उतनी एनर्जेटिक को फाउंडर हो तो हो सकता है आपको ज़रूरत ही नहीं हो को फाउंडर की, उतने एनर्जेटिक फाउंडर हो। बट जनरली क्या होता है, एवरेज आदमी 8-10 घंटे काम करना चाहता है, एवरेज आदमी को चाहिए कोई बैक, मतलब विजय के अंदर एक और चीज़ है कि विजय ना डरते नहीं है। ये मैंने विजय में खास चीज़ देखी है कि इज अ रिस्क टेकर। तो मतलब मैंने जब इनिशियली, क्योंकि मैंने काफ़ी बुक्स पढ़ रखी थी, तो इनिशियली जब विजय के साथ काम किया तो मेरा एक और एम भी था। मैंने कहा विजय को ऑब्जर्व करके ये पता चलेगा ये बुक्स में सब कुछ ठीक लिखा था या झूठ लिखा था। तो मैंने देखा काफी चीजें विजय की ना वो बुक्स से मैच हो रही थी, जो बुक्स में जो बिल्कुल एक एक चीज लिखी थी होनी चाहिए वो उनमें थी। और वो मैंने एक खास चीज देखी कि मतलब विजय के अंदर इंटेलिजेंस की एक और चीज बताता हूँ कि विजय 15 साल में दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में चले गए थे, और 15 की जगह उन्होंने एग्जाम तो 14 में ही पास कर दिया था, 14 में उन्होंने एडमिशन नहीं दिया था। 15 में उनके फादर बातचीत करने गए कॉलेज में कि सर दूसरे साल इसने पास किया, इनको कम से कम दूसरे साल को एडमिशन दे दो दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में। तो विजय ने इंजीनियरिंग काफी कम एज में पास कर ली थी, क्योंकि 15 साल में कॉलेज चले गए थे। तो मैं वही बता रहा हूँ कि वो विजय जैसे को फाउंडर, मतलब दोनों ही चीज है ना। विजय को फाउंडर मिलना इसलिए मुश्किल है क्योंकि उनमें इतनी एनर्जी है, इतना इंटेलिजेंस है, और ऑब्वियसली दूसरे को फाउंडर के लिए भी विजय जैसे आदमी के साथ काम करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि आप इक्वल पार्टनर हो गए तो फिर आपकी इंटेलिजेंस और पैसे भी तो इक्वल होने चाहिए ना। मतलब इंटेलिजेंस और आपका पैशन इक्वल होना चाहिए, जो एक लेवल पे मुश्किल हो जाता है। तो जनरली अगर कोई 8-10 घंटे काम कर रहा है, रिलेटिवली अबव एवरेज इंटेलिजेंस है, बट 10 में से 10 टाइप की इंटेलिजेंस नहीं है, तो को फाउंडर मिलना थोड़ा आसान हो जाता है। ये आपने देखा होगा शादी में भी, जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत मतलब बहुत इंटेलिजेंट, बहुत सुंदर, बहुत पैसे वाले होंगे, उनकी शादी अरेंज मैरिज में लेट होती है। क्यों? क्योंकि उनके नखरे ज्यादा होते हैं। ये आपने देखा होगा, क्योंकि वो चूज ही नहीं करते। तो इसी तरीके से को फाउंडर का भी है कि बहुत आप सर्वगुण संपन्न हो तो को फाउंडर की जरूरत ही नहीं है। इस केस में फिर ये भी है ना, इट्स नॉट लाइक मैरिज कि आपको चाहिए ही को फाउंडर। अगर आप बिना को फाउंडर के पैसे रेस कर पा रहे हो तो आई थिंक वही बेटर है। So we have a question from Malav Shah. How to conquer mindset if technology is new and the customer is yet to experience such a technology, and they're working on hologram technology, sir. देखिए इसीलिए मैंने आपको फेक प्रोडक्ट कहा था। तो एप्पल का एक बहुत अच्छा वीडियो है, हाउ टू क्रिएट अ फेक प्रोडक्ट। तो कहते हैं अगर एक IoT टोस्टर बना रहे हो तो आपको जरूरी नहीं है कि वो टोस्टर लाइव बनाना है। आप गत्ते का टोस्टर बनाओ जो बिल्कुल थोड़ा सा लाइव टोस्टर की तरह लग रहा है। उसमें IoT के लिए एक LED लगा दो जो फिजिकली ऑन ऑफ कर रहे हो, ये भी नहीं है कि वो ऑटोमेटिक ऑन ऑफ हो रही है। अब आपको किसी को भी वो दिखाओगे तो यूजर उस पर फीडबैक देगा कि ये मुझे अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो एक एग्जांपल देता हूँ, ड्रॉप बॉक्स वाले जब अपना फीचर लेके गए तो किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि ड्रॉप बॉक्स क्या होगा। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने वो चीज बनाई नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली सब कुछ बना ही लेते तो फिर फंडिंग की जरूरत ही आती। वो वीडियो बना के लेके गए। अब वीडियो बनाने से फायदा क्या हुआ कि वीडियो सस्ते में बन गया, और उसके बाद वो इन्वेस्टर को जाके उन्होंने दिखाया कि ये देखो हमने ये ड्रॉप बॉक्स ऐसा बनाएंगे, ऐसा लगेगा, क्या आप ये इन्वेस्ट करना चाहोगे? तो आप अगर कोई चीज ऐसी बना रहे हो जो लोगों ने नहीं देखी, उसका वीडियो बना लो। होलोग्राम का एक बड़ा सिंपल एग्जांपल है, आप एक्चुअल होलोग्राम दिखा सको तो बेस्ट है। मैं एक और चीज बताता हूँ आपको, कई बार लोग असली देखना चाहते हैं। मैं 15 साल पहले की बात है, 16 साल पहले की, 2004 की या 3 की बात होगी। तो उस समय मैं ना एक एंटरप्राइज कस्टमर को दिखाने गया कि मोबाइल ऐप बना सकता हूँ मैं आपके ERP के लिए। तो PPT में दिखा रहा था, तो वो बोले नहीं है मेरे को फोटोशॉप PPT मत दिखाओ, मेरे को एक्चुअल मोबाइल ऐप दिखाओ, मैंने जिंदगी में कभी मोबाइल ऐप नहीं देखी है। तो अब वो होलोग्राम में भी यही होगा कि अगर तुम मेरे पास आओगे कि सर एज अ एंजल इन्वेस्टर 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दो, मैं सबसे पहले कहूंगा मेरे को असली होलोग्राम दिखाओ, क्योंकि मैंने भी जिंदगी में एक ही बार होलोग्राम देखा है। मैं एक बार डिज्नीलैंड गया था ऑरलैंडो में, आई थिंक वहां देखा था। तो और उसके अलावा मैंने कभी होलोग्राम देखा नहीं है। तो आई वुड से कि आप होलोग्राम दिखाओ, वो तो बेस्ट है। अगर आपको लगता है होलोग्राम दिखाने के लिए 50 लाख चाहिए और वही तो लेने जा रहा हूँ, वो मुर्गी अंडे वाली सिचुएशन है, तो आई वुड से आप एक वीडियो बनाओ, और अगर या कोई ऑनलाइन वीडियो दिखाओगे सर ये होती है होलोग्राम टेक्नोलॉजी और ये मैं बना सकता हूँ, और उसको कन्विंस करो कि टेक्निकली आप बना सकते हो। आइडियली इट इज बेटर टू हैव MVP जहां आप दिखा सकते हो सर 10 फीट का होलोग्राम नहीं बना पा रहा, 10 इंच का होलोग्राम बना पा रहा हूँ, उसके लिए मैंने 50,000 की मशीन बनाई है। अगर आप मुझे 50 लाख दोगे तो मैं 10 फीट का होलोग्राम बनाऊंगा जिससे ये सब कुछ हो सकता है, सॉर्ट ऑफ दैट। सो एक और क्वेश्चन है, वी वांट टू गिव कैश बैक टू डोमेस्टिक रेजिडेंशियल सोसाइटीज। एक हाँ, मैं एक चीज जो मैं कई बार नहीं कवर करता हूँ, आई वुड से कि इस क्वेश्चन की बात कर सकता हूँ। आप business.paytm.com पे जा सकते हैं, मैं लिख भी देता हूँ।
इस पे जाके आप पेटीएम की सर्विसेज ऑनलाइन वाली ले सकते हैं। तो ये कैशबैक सर्विस हमारी एक पेड सर्विस है। ये एक सेकंड में पब्लिक चैट कर देता हूँ। कैशबैक हमारी एक पेड सर्विस है जिसमें हम 2% चार्ज करते हैं। आप जाके वहां पर कैशबैक सर्विस ले सकते हो। आप पेमेंट गेटवे पेटीएम का ले सकते हो। आपको जान के शायद हैरानी होगी, पेटीएम का पेमेंट गेटवे इंडिया का सबसे बड़ा पेमेंट गेटवे है। वी प्रोसेस मोर देन 35,000 करोड़ ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू अ ईयर। तो हम बहुत बड़े लेवल पे पेमेंट गेटवे चलाते हैं। ओयो और आईआरसीटीसी ये सब लोग हमारा पेमेंट गेटवे यूज करते हैं, ऊबर वगैरह। तो अगर आप चाहो वो ले सकते हो। एक चीज मैं गुजरात स्टार्टअप हब से, जो आई हब है, इनसे बात कर रहा हूँ कि हम 1 लाख Yes. रुपए महीने ट्रांजैक्शन वैल्यू तक की पेमेंट गेटवे सर्विस आपको 1 साल के लिए फ्री दे देंगे। गुजरात में जितने स्टार्टअप रजिस्टर्ड होंगे उनको फ्री जी मिलेगी। तो इस पे आई थिंक आप लोगों को बड़ा फायदा होगा, बिकॉज 12 लाख तक की ट्रांजैक्शन वैल्यू हो जाएगी 12 महीने में। वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे देंगे, कोई चार्ज तो वो हमारा है प्रोग्राम देने का। बट इन बिटवीन अगर आप चाहते हो पेमेंट गेटवे तो आप business.paytm.com पे जा सकते हो, या मैं अपना yes कॉन्टैक्ट लिंक लिख देता हूँ। आप मुझे email भी कर सकते हो, मैं अपने जूनियर को आपका क्वेरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ। तो ये मेरा ईमेल एड्रेस है। और मेरा @skj सौरभ नाम से मैं ट्विटर पे और दूसरे सोशल मीडियाज पे हूँ। आप या तो सौरभ जैन पेटीएम सर्च कर सकते हैं या skj सौरभ सर्च कर सकते हैं। तो मैं इन पे हूँ। आप मुझे जनरली ट्विटर पे अगर आप इस टाइप का कुछ लिखते हो तो मैं जनरली business.paytm.com के लिए आपको कहता हूँ मैसेज कर दीजिए, फिर मैं आपका ईमेल फॉरवर्ड कर देता हूँ। right तो एक और क्वेश्चन है, वी आर स्टार्टअप सर, तो वी हैव लो बजट, कैन यू हेल्प अस इन सेम। देखिए वही मैं बता रहा हूँ कि 2 तरीके से आप लो बजट की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। एक तो जैसे हम पेमेंट गेटवे हमारे हाथ में देखिए हम अपना प्रोडक्ट ही फ्री कर सकते हैं, तो पेमेंट गेटवे फ्री कर दिया। दूसरा चीज हम जो कोशिश कर रहे हैं कि अभी और प्लेटफॉर्म में बढ़ा के कुछ और प्रोडक्ट्स भी फ्री देना शुरू कर दें लोगों को। एक तीसरी चीज जो मैंने आपको जैसे कैनवस में बताई कि अगर आप सर्च फेज में हो ज्यादा पैसे मत खर्चो, आप सस्ते प्रोडक्ट बनाओ, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाओ। अगर उबर का मैंने आपको एग्जांपल दिया, आपको मैंने बर्गर का एग्जांपल दिया कि आप बजाय आप एक स्टॉल लगा के चेक कर लो बजाय इसके कि आप पूरी दुकान खोलो। एक बहुत अच्छा एग्जांपल लीन स्टार्टअप बुक में है, उसमें है ज़ेप्टो एक कंपनी थी, उसके फाउंडर ने क्या करा, उसने एक पेज की वेबसाइट बनाई, बड़ी क्रूड वेबसाइट थी। उसमें लिखा हुआ था कि ये जूते खरीदना चाहते हो तो मुझे ईमेल करो। लोग ईमेल करते थे, वो जूता लेके आप उनके घर पहुंच जाते थे। ना कोई एम्प्लॉय रखा, जूता कहाँ से खरीदते थे, दुकान से खरीदते थे। तो हर जूते पे कुछ डॉलर का नुकसान होता था उन्हें। तो आप कहेंगे वो बेवकूफ थे कि हर जूते बेचने पे नुकसान करता। वो बेवकूफ नहीं थे। उन्होंने सर्च पेज में क्या करा, ना तो एम्प्लॉय रखा ना दुकान रखी, एक पेज की वेबसाइट बनाई, ईमेल फ्री होता है। तो उनकी जो बेसिकली क्या था, उनकी सारी कॉस्ट प्रैक्टिकली जीरो थी। हर जूता बेचने पे जरूर कुछ कॉस्ट लगती थी और खुद ड्राइव करके जूता देने जाते थे कस्टमर को। उससे उन्हें कस्टमर की नॉलेज मिलती थी। उस समझ लीजिए 50 जूते बेचने गए तो हमने 50 कस्टमर से बात करी कि आपको क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन फिट आप बहुत सस्ते में कर सकते हैं, फेक प्रोडक्ट बना के, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बना के। तो आई वुड एडवाइज यू कि आप सर्च पेज में लो बजट ही रखिए, क्योंकि आप एक आध एम्प्लॉय से ज्यादा नहीं रख रहे हैं सर्च पेज में, या एम्प्लॉय रख ही नहीं रहे हैं, तो आपकी कॉस्ट नहीं होगी। बिल्ड फेज में भी कॉस्ट रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, एम्प्लॉयज को आप रिसोर्स दीजिए, सैलरी कम दीजिए। जैसे अगर कोई 1 लाख रुपए महीने की सैलरी वाला है, उसको आप 50,000 सैलरी दो, 50,000 उसको कहो कि यार कम दे रहा हूँ, इस एवज में तुझे रिसोर्स दूंगा। प्रोडक्ट मार्केट फिट में भी यही है कि आप हो सकता है आप एग्जिस्टिंग मार्केट प्लेसेस में जाइए। हम एक मिनी ऐप प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं जहां हम एग्जिस्टिंग स्टार्टअप्स को पेटीएम के अंदर इंटीग्रेट करने की ऑप्शन दे देंगे, तो आप अपनी ऐप्स हमारे अंदर इंटीग्रेट कर पाएंगे। इसी तरीके से जैसे अगर आप ऐप्स बनाते हो तो कोई एप्पल या गूगल कुछ चार्ज तो करता नहीं है, इसी तरीके हम भी नहीं करेंगे। तो प्रोडक्ट मार्केट फिट में आप रिड्यूस कर सकते हो। मार्केट प्लेसेस में जनरली लिस्टिंग फ्री होती है या बहुत सस्ता होता है। एप्पल $100 लेता है जैसे आईफोन की ऐप के लिए अकाउंट बनाने के लिए। Saurabh sir? Sir? so yeah please go ahead सर एक्चुअली मेरा जो स्टार्टअप है वो कॉलेज स्टूडेंट्स को हेल्प करता है लैपटॉप खरीदने के लिए एंड मोबाइल फोन खरीदने के लिए। ओके, And तो Paytm Mall has- देते हो, you give money या you help in getting loans? we help people buying is like we give them knowledge and we provide them the best price platform. For example, Paytm Mall पे कोई चीज अगर सस्ते में मिल रही है तो तो वो बेसिकली हम उनको ढूंढ कर दे देता है कि Paytm is the lowest price. तो आई वुड से कि इस केस में तो तुम्हारी कॉस्ट सिर्फ वेबसाइट बनाना ही है ना, या और भी कुछ कॉस्ट है?
हाँ सर, मैं पूछ रहा था कि पेटीएम मॉल एफिलिएट प्रोग्राम ऑफर करता है, तो वो सिर्फ स्पेशल पेटीएम कस्टमर मॉल जैसे का स्मार्ट परीक्षा अभी उनके तो लिए? नहीं है एफिलिएट प्रोग्राम पेटीएम मॉल का, बट गुड एडवाइस। हम आई वुड गिव दिस फीडबैक, बट आई थिंक राइट नाउ थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा अभी, तो जो कोरोना वाली सिचुएशन है उसमें 1-2 महीने शुरू नहीं होगा। बट गुड एडवाइस। हम जो अभी और प्रोडक्ट्स वगैरह फ्री देने की सोच रहे थे उसमें मे भी पेटीएम मॉल का भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। गुड एडवाइस। अभी एज सच पेटीएम मॉल का कोई स्टार्टअप का प्रोग्राम नहीं है अभी एज सच, पेमेंट गेटवे में ही है हमारा स्टार्टअप प्रोग्राम इसमें। तो एक और क्वेश्चन है, इफ यू वांट थैंक यू टू सर। टाई अप विद गवर्नमेंट व्हेन योर इनोवेशंस आर फॉर पब्लिक, हाउ कैन यू डू दैट? देखिए, गवर्नमेंट से टाई अप करना थोड़ा मुश्किल काम रहता है जनरली। एक तो हायरार्की बहुत लंबी होती है, एक समझ नहीं आता किसके पास जाओ। थोड़ा सा बेनिफिट ये हुआ है, स्पेसिफिकली करंट गवर्नमेंट में कुछ सुधार हुए हैं। वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप कमेटी में हूँ, तो उन्होंने अभी एक कवच प्रोग्राम शुरू किया है कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए। तो अगर आपकी स्टार्टअप कोरोना के ऊपर कुछ बना रही है तो उन्होंने वो कवच के थ्रू फंडिंग दे रहे हैं कवच प्रोग्राम में। बेस्ट तरीका यह है कि आप मेरे को ईमेल या आप पिंग कर लीजिए, मैं आपको अनीता गुप्ता जो डीएसटी में सीनियर हैं उनसे जो देखती हैं ये कवच प्रोग्राम, उनसे कनेक्ट कर सकता हूँ। अगर कोरोना रिलेटेड नहीं है तो आई वुड से कि आप गुजरात में जो ये आई हब है या जितने भी ये जो स्टेट वाइज स्टार्टअप प्रोग्राम्स होते हैं, आई थिंक दे आर दी बेस्ट पीपल टू कनेक्ट विद स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में ये है कि देखिए चक्कर तो लगाने पड़ते हैं, बट आई वुड एडवाइज कि अगर आप सही कॉन्टैक्ट के पास चले जाते हो थोड़ी ऑनलाइन रिसर्च वगैरह करके तो जल्दी हो जाता है। आजकल कुछ फायदा होने लगा कि काफी लोग ट्विटर पे भी होने लगे हैं, एंड जनरली जो अच्छे आईएएस ऑफिसर्स होते हैं जो थोड़े डायनेमिक होते हैं वो होते हैं ट्विटर पे कई बार पहुंचना इजी हो जाता है। तो आई वुड टेक वन लास्ट क्वेश्चन बिकॉज हमारा एक्चुअली 5 से बजने वाले हैं मेरा। Yes, sir, we'll just take one question. Yes, sir. हाँ, तो एक लास्ट एक क्वेश्चन है, ये एक सेकंड, वी वांट टू, नहीं कैशबैक वाला तो हम कर चुके हैं। So there's a question from Vinay. He wants to know your experience, the mistakes and what you learned from there as an entrepreneur. देखिए, मैं तो आपको यही बताऊंगा कि ये जो 9 स्टेप्स मैंने बनाए हैं ना, ये जो कैनवास बनाया है, ये मैं प्रैक्टिकली बताऊं तो मैं तो 2002 से एंटरप्रेन्योर था। नोकिया का एक इवेंट मैंने ज्वाइन किया था 2002 में, उसमें मैंने पहली बार मोबाइल ऐप बनते हुए देखी थी। और 2002 से मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ 2005 तक मैंने, मतलब 2005 जनवरी तक मैंने 1 रुपए भी नहीं कमाया था जब मेरी रिलायंस कम्युनिकेशन से टाई अप हो गई थी। मैं मोबाइल ऐप बना भी पा रहा था, 2-3 एम्प्लॉय भी रख लिए थे। उसका रीजन ये था, उस समय एक तो स्टार्टअप कुछ होती है मुझे पता नहीं था, मेरे को तो ये था मैं टेक्नोलॉजी कंपनी बना रहा हूँ। दूसरा ये था कि मैं एज अ सीए था तो ये समझ नहीं आता था जब तक कमाई नहीं होती तो सीए का काम कैसे छोड़ूं, तो वो दोनों नाव में पैर रख रहा था। तीसरा ये था सर्च बिल्ड और स्केल, ये 3 फेज पता नहीं थे, तो उस समय मेरे को यही क्लियर नहीं था। एक बहुत बड़ी गलती जिसके लिए अभी मैंने एक लिंक्डइन पे पोस्ट लिखी कि टेक्नोलॉजी इज यूटिलिटी, टेक्नोलॉजी इज नॉट, वो इनोवेशन इज यूटिलिटी, इनोवेशन इज नॉट टेक्नोलॉजी। काफी लोग मेरे को पर्सनली भला बुरा भी कह रहे हैं उस पोस्ट में, बट पॉइंट इज कि टेक्नोलॉजी इम्पोर्टेंट नहीं है, यूटिलिटी टू कस्टमर इज इम्पोर्टेंट। ये मुझे कई साल खून के आंसू पीने के बाद, मैं सही बता रहा हूँ, समझ आया। मैं अगर आज एनालिसिस करता हूँ कि मैंने मोबाइल ऐप 2002 में बनानी शुरू करी, विजय ने भी उस समय प्रैक्टिकली मोबाइल ऐप बनानी शुरू करी थी। मेरी कंपनी मोबाइल ऐप में कोई खास, मतलब आई वुड से एवरेज रही 2010 तक। 2010 के बाद मुझे जो काम मिले, उसका रीजन ये था कि आई वाज ऑलवेज फोकसिंग ऑन G2M टेक्नोलॉजी, आई वाज नेवर फोकसिंग ऑन कस्टमर। मुझे प्रॉब्लम ही नहीं पता था मैं कौन सी सॉल्व कर रहा हूँ, मैं कोई प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं कर रहा था, ना कोई सॉल्यूशन दे रहा था। मेरा दिमाग में सिर्फ एक ही भूत सवार था कि एक अच्छी टेक्नोलॉजी कंपनी बनाऊंगा। मैं बिल गेट्स को पूजा करता था प्रैक्टिकली, तो मेरे दिमाग में वही था जो आज भी मैं अपनी पोस्ट में देखता हूँ। काफी लोग मैंने उसमें लिखा है कि जो मैंने पोस्ट किया है 11 लाख व्यूज हो गए हैं लिंक्डइन, अभी 2 दिन पहले किया था। उसमें ये लिखा था कि एलोन मस्क मार्स पे जा रहे थे, गूगल क्वांटम कंप्यूटिंग कर रही थी, पर हिंदुस्तान वाले अमेरिका के लिए दवाई बना रहे थे, और हिंदुस्तान वाले आज अच्छी पोजीशन में हैं। कोरोना में आप देखते हो। तो मेरा ये कहना है कि यूटिलिटी इंपॉर्टेंट है, आप कितने टेक्निकली कॉम्पिटेंट हो वो सेकेंडरी है। आई एम नॉट सेइंग कि टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है, मोबाइल ऐप बनाओगे तो ऑब्वियसली ऐप की जरूरत है, बट ये जो एजुकेशन स्टार्टअप जब मैंने खोली वो इन बिटवीन जरूर मेरे को विजय ने बुला लिया तो आई ज्वाइन पेटीएम, बट जब तक मुझे अकल आ गई थी कस्टमर इज मोर इम्पोर्टेंट देन टेक्नोलॉजी।
तो अगर मुझे चूज करना है बिटवीन अ कस्टमर एंड अ टेक्नोलॉजी, तो मैं कस्टमर को चूज करूंगा। जैसे विजय ढाबे वाले को वैल्यू देते हैं, वो स्टैनफोर्ड पढ़े लिखे इंजीनियर को भी वैल्यू देते हैं। अगर उनको दोनों के बीच में चूज करना हो तो मेरे को एक दिन बड़े क्लियर बता देते, बोले मेरा बॉस कौन है, मेरा बॉस वो ढाबे वाला है जो मैंने आपको एग्जांपल में बताया। उनका बॉस वो इन्वेस्टर को, ऑब्वियसली इन्वेस्टर बॉस है, ऑब्वियसली सीनियर लोग की इनपुट लेते हैं, बट वो अपने मन में किसको बॉस मानते हैं, वो आम आदमी हिंदुस्तान का जो रिक्शा वाला ठेले वाला जो पेटीएम करता है वो उनका बॉस है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टैनफोर्ड का इंजीनियर उस ठेले वाले से कम वैल्यू का है मेरे लिए। ये मेरी क्लियर सोच है, जो 15-20 साल खून के आंसू रोने के बाद मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ कि 2002 से 2010 तक बहुत डिफिकल्ट टाइम था मेरे लिए। मैंने पेटेंट वगैरह भी लिए, बट अमेरिकन पेटेंट लेने के पैसे नहीं थे। बहुत मतलब आप लोगों के साथ जो जो बीत रहा होगा वो सब कुछ मेरे साथ हुआ। घर वाले भी कहते थे क्या बेकार काम कर रहे हो, मेरे जानने वाले कहते थे सीए प्रैक्टिस छोड़ गए क्या, बकवास में लगे हुए हो मोबाइल ऐप्स में। ये इस टाइप के मैंने क्वेश्चन लोगों से वार्तालाप हुए हैं मेरे। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये सब आपको मतलब पेन से गुजरना पड़ेगी। तो मुझे तो एक ही चीज समझ आई कि विजय में एक चीज खास एक्स्ट्रा क्या थी जो मेरे में 2000 से 2010 के बीच में नहीं थी। दो चीजें विजय में बहुत क्लियर एक्स्ट्रा थी। विजय सबसे पहले कस्टमर की सोचते थे, और मैं आज भी बता रहा हूँ कि विजय के लिए कस्टमर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी सब लोग सेकंड नंबर पे आते हैं। दूसरा, विजय इंटरपर्सनल स्किल्स में बहुत अच्छे थे। मैं थोड़ा इंट्रोवर्टिस्ट था, वो आदत हुई थी वो टेकी वाली की, कंप्यूटर के आगे बैठ के टुक टुक करते रहो, बट लोगों से बात करने में घबराहट होती थी। वो गलत है। आप प्रॉब्लम ढूंढो, सॉल्यूशन के लिए लोगों के पास वो MVP लेके जाओ, 10-20 लोगों से तो एटलीस्ट बात करो। जनरल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है कि 100 लोगों से बात करो, उनसे इनपुट लो, वो मैं नहीं लेता था। तो आई वुड से ये मेरी एक बहुत बड़ी इनपुट है जो मैंने तो जीवन में मतलब आज अगर मेरे को 20 साल पहले भगवान भेजेंगे तो मैं तो कहूँगा मैं एक कैनवस से करूंगा, और मैं 100% कॉन्फिडेंट हूँ कि अगर मैं इस कैनवस से 2002 में मोबाइल ऐप बनानी शुरू करता तो मैं कम से कम आज $50 बिलियन की कंपनी खुद बना चुका। तो बट मेरे को मुझे इन 9 के 9 में से कोई भी स्टेप नहीं आता था। कुछ स्टेप तो मुझे पेटीएम ज्वाइन करने के बाद पता चले, जैसे कॉर्पोरेशन वाला स्टेप मुझे नहीं पता था, कभी 1000 आदमी कंपनी में काम ही नहीं किया था, तो ऑब्वियसली वो स्टेप ही नहीं पता था कि क्या क्या चाहिए होता है 1000 आदमी कंपनी में। So with that, I would like to say best of luck to all of you, and hopefully हम गुजरात गवर्नमेंट के साथ ये जो पेमेंट गेटवे का फ्री प्लान देंगे तो आप सबको ऑफर होगा। एंड इन बिटवीन अगर आपको चाहिए तो आप मुझे ईमेल लिख सकते हो। आई वुड लाइक टू गिव यू दैट फ्री प्लान टिल देन। So with that, best of luck to all of you and build for India, because हमारे देश को एंटरप्रेन्योर्स की जरूरत है। Thank you so much, sir, for this informative session. We got to know a lot about the importance of forming a team and the 9 steps of success, the importance of a core team, and especially the theory of multiple intelligence. And I believe it was very informative for the startups, and especially in this situation, it has been very motivating for them. Thank you so much, sir, for your time. Welcome.